are looking at hearing from you. So please give us your advice and bless us for this Pathshala session too, sir. Namaste to everybody. First of all, itna build up nahi chahiye yaar. Maybe I'm also another jeweler like you, and I'm honored to be a part of this fraternity. God's grace, Krantiji has asked me to share the importance of learning. But before that, I would like to say that I'm also learning with you. Maybe इसके बाद एक seminar सुनने वाला है आपके साथ, maybe सिखाने वाला है. I also want to learn, and more than my advice, I would like to share what I have learned, or what I have learned over a period of time. Now, since this seminar is in particular to training, the importance of training is not anything that I have to tell any salesman. I'm not even talking manager, owner, chairman, MD, supervisor, anybody who deals with a customer. There is no end to how much we can learn. See, one beautiful thing in sales is every day we meet a different type of person. Every customer is new. Every customer is a different type of challenge, an interesting challenge that we have to solve. That becomes a win-to-win situation for both the company and the customer also. So first of all, there is no such thing as I have learned anything. खाली भगवान का सब कुछ मालूम है, and ये सेमिनार में कोई भी भगवान नहीं है. So unless you say I am God, there is no end that you can stop learning. And just before this call, I was in a learning session with our team. We were learning from Marshall Goldsmith, and one more way to be young. Actually, it's a small joke also, but if you want to be young, you have to be a student here. कभी मास्टर बन गया, अभी क्रांति जी बोला, this other gentleman told, ये बड़ा है, छोटा है, don't make me old. I'm very young. I want to learn. I want to keep learning. I'm always a student. So learning is one way to be young, not only in the mind, but also in the body. Number two, my strong belief is once you go little bit above in your career. See, हम काउंटर में काम करता है, हमके ऊपर एक supervisor डाल देता है. Then God's grace, I become supervisor. Then I become floor manager. Then after that, I become showroom manager. Then I become AGM. Then DGM, GM. भगवान आशीर्वाद, आप लाइफ में कितना भी ऊपर जाओ, you should not forget that there are people who are always joining the organization newly. Might be one person, might be 5 people, might be 100 people, depending the size of the organization. But once you come up in life, आप थोड़ा ऊपर आए तो आपके साथ एक बड़ा टीम है, and taking care of that team is your responsibility. You can call your designation anything. You can be MD, you can be chairman, you can be supervisor, doesn't matter. Captain. If you are the leader of your team, it is your duty to train your team until the day you die. Now we are all retailers, so we don't retire. So until the day we die, we want to make money. So until you die, you have to train your team. Number two, also you have to keep on training yourself. There is no end to it. See, for example, the last 40 days, what they call a new normal. We are doing decent business in e-com, but इतना बड़ा business नहीं है. But e-com में कुछ भी मालूम नहीं है. I'm telling you openly. My manager, my supervisor, my staff, even the computer operator knows more about e-com than me. Artificial intelligence बोल रहा है, machine learning बोल रहा है. Then they're saying, भाई साहब ये काम करेगा, वो काम करेगा. Then after some days he says, you don't need to come, sir. The computer will take care of everything. So I'm thinking, maybe 5 years ago I should have learned about e-com. So where is the end to learn? That is the next new business. So how much do I know about e-com? I don't know much. So I also want to learn more about that and more to see how we can sell without meeting the customer in person. See, GRT is doing a decent business in e-com, but so much scope, so much more that we can do in that. I always think of my staff, our team, as my assets. See, I'm not telling you just because it's a seminar or anything. It's something that is coming from my heart. They are our genuine wealth. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास ये है, वो है, सब कुछ है.
but भगवान सबके ऊपर एक fantastic team दिया था मुझे. That is one of the blessings that we have got in life. GRT has a fabulous team. A team is an investment. Supposing I am buying a costly car, 10 lakh के लिए एक गाड़ी खरीदा था. Won't I take good care of that car? I am buying a nice watch, 2 lakhs, 1 lakh, 50,000, 10. Won't I take care of that watch? Like that, your team is your asset. You have to take care of your team. How to take care? Training. What better way than training? See, because when you train your team, he performs better and he goes up in his life. When you have 100 people working under you, all those 100 people make more money, you will not make more money. 11-member cricket team hai. I am the captain. 9 of them go and hit centuries. पहला beneficiary कौन है? मैं ही है ना. I used to tell my guru, see, we are all like diamonds, uncut diamond. But training is like that polish. It's that what brings that shine. I am telling you, God's grace, God has blessed everybody with everything. We are all uncut diamonds. But to shine, we need to train. And all of you know, you're all jewelers. Diamond is very hard. Diamond cut करने के लिए बहुत मुश्किल है. Like that, without difficulty, you cannot improve yourself. You have to be disciplined. You have to learn. You have to train the team. The team also has to learn. बिना polish चमक नहीं सकता है ना. So training is very important. I'm just trying to give various examples so that I can try and impress. When Kranti was telling me, you come and speak about the importance of training, it's like, अरे यार brush करने के लिए क्या? Why should I teach people to brush their teeth or have a bath? Training should be a part of your life, whether it is for me, my team, my company, it doesn't matter. There is always somebody who is better than you in something. Learn from them. See how you can build up yourself and your team. One more important reason for training is not only this e-com. The world is so big. Jewelry is our life. See, we are our mother, our father. Everything is jewelry only. But jewelry is not an island. Jewelry exists within a much bigger economy. So we don't know what will affect what tomorrow. If you told me 25 years ago a customer will buy a diamond necklace on e-com, I would have laughed at you. Without seeing the product, how will they buy? But today my son, who's only about 14 years old, he knows more about computers than me. Now, should I be proud as a father or should I be ashamed as an MD? Even if you are the captain of your team, you don't need to know how much your finance director knows, your CFO, or how much your IT in charge knows, or how much your HR knows. They're all superstars in their own way. But you must know something to talk to them, no? For that, at least you have to keep on training yourself. When we speak to my team, see, God's grace, we have grown today. We are across South India and we are blessed with a fabulous team, like I said. आनंद जी sorry to interrupt. थोड़ा सा हिंदी, बहुत लोग हिंदी बोल रहे हैं. थोड़ा सा please. हिंदी बोलो तो आप हंसेगा यार. नहीं. I'll try. हाँ. If you don't laugh, I'll try. नहीं please. मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी भगवान आशीर्वाद 25 साल के पहले हम दुकान के आने में the most interesting thing that I liked was closing a sale. It's not the money, but the challenge. I used to think if a drunkard will come to the shop, I should attend that person. If a police wala comes to the shop, I should attend that person. If a husband and wife fighting and come to the shop, I should, because that is the best way to learn. But I miss all that today. भगवान आशीर्वाद अभी चेयरमैन बन गया, एमडी बन गया, कमरे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया. अभी सेल्स में नहीं बैठ सकता है. But I also understand, भगवान आशीर्वाद, we have thousands of staff today. ये हजारों में एक ही आदमी गलत कस्टमर बात किया और कस्टमर के सामने मुंह दिखाया और he didn't give respect anything, then customer will not say ये आदमी, he will say GRT में respect नहीं है, GRT में सर्विस नहीं है, पहला GRT ऐसे, तुम्हारा पापा टाइम में ऐसे, तुम्हारा दादू टाइम में ऐसे, अभी तू बड़ा बन गया, आप लोग का टाइम नहीं है कस्टमर देखने के लिए. So understand, if you have even 5 staff, you have to go to the bathroom every day. You have to go to lunch. You have to take weekly 1 day off. You have to go to a movie with your wife.
At that time, your staff only is taking care of the shop. If he is not trained well, who's the loser? I don't think I can put it more simple than this. अपने पास तो इतना 1000 लोग स्टाफ है, बट एक एक आदमी के अंदर हम है. एक आदमी अच्छा किया तो वो बेनिफिट, वो नाम, आप अभी बोल रहे ना GRT है, वो है, all that credit is to our staff only. Now if my staff is well trained, then tomorrow we will give 1 lakh people job. Why not? Now if that staff is not well trained, even Kranti won't call me next time to the meeting. She would have gone to a GRT shop. Nobody would take care of her. She will say, "अरे GRT में इतना बात कर रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं है." So where? I do not know. एक कॉफी रखने एक छोटा बच्चा वो कस्टमर के सामने बिहेव अच्छे नहीं किया तो पूरा दुकान का नाम, पूरा कंपनी का नाम खराब हो जाता है. So training is very, very important. अपना in our showroom, in our company, we have a separate training department. And beauty क्या है तो everybody gets trained from the lowest level to the highest level. सबको ट्रेनिंग चलता है. मे भी थोड़ा ऊपर लेवल में हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं. आपको व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आपको क्या इंटरेस्ट है, कंपनी पैसा देगा, आप लर्न करिए. मैं पहले ही बोले ना, मेरा असेट, माय वेल्थ इज माय स्टाफ. इफ माय स्टाफ ग्रोस, आई ग्रो ऑटोमेटिकली. इसमें इतना बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू इज, हम सोचते हैं हम इतना बड़ा आदमी है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है. The first thing in learning is you must unlearn. हम साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छा स्टोरी है, I'll try and tell it in हिंदी. एक बार अपना शिव जी है ना, शिव भगवान, उनका दूसरा बेटा नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं है, साउथ इंडिया में लॉर्ड मुर्गा बोलता है. So लॉर्ड मुर्गा के पास उनका बेटा है, एक डाउट पूछा था. बेटा बोला पापा को, पापा तू मेरे पास डाउट पूछ रहा है, तो मैं बन गया टीचर, आप बन गया स्टूडेंट, तो आप नीचे बैठो, ऐसे बैठो, फिर बाद में मैं बात करेगा. See, the example that I'm trying to turn is, even if he is God, if he wants to learn, he must sit on the floor. ऐसे बैठ के हम सीखना चाहिए. इसलिए then we need to go to our brain or heart. English में एक बहुत अच्छा word है, they call it unlearning. If I know everything, I will be God. यार, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है. If I think I am big, मुझे इससे भी बड़ा आदमी है. If he thinks he's big, उससे भी इसका और बड़ा आदमी है. इंडिया में इतना एग्जाम्पल्स है, दुनिया में इतना एग्जाम्पल्स है. There are much bigger people than us. We have to learn to become like them. Unlearning पहला सीखना चाहिए. If you are the boss, मेरे पापा के साथ भी कभी बात करते, मेरे पापा कभी गुस्सा आता है, बोलते पापा क्यों इतना गुस्सा करे, बोले अरे मुझे बुढ़ा हो गया, आई एम गेटिंग एंग्री वेरी फास्ट, मैं क्या करूं. First thing I tell my father is, Father, if you want to be my friend, teach me. आप गुस्सा हो गए तो where will I learn? The same thing I'm telling you, you must have the humility to understand that you have not learned everything. This is starting from the Malik. Whether you might be 1,000 crores, 500 crores, whatever, any number of crores, you must first have the humility to understand. दुनिया इतना fast change हो रहा है. I think this COVID is the best example. The way we are going to do business tomorrow is going to be very different from what we are doing today. बहुत फर्क आने वाला है. We must be willing to learn first. We have to train ourselves in so many new things. So पहला unlearn. I'm trying to give you a better example for unlearning, but if you do not want to unlearn, then you cannot learn. So this is for the bosses, the message for the team leaders, the captains, the owners. मालिक लोग, सब लोग का छोटा से small learning is first unlearn, and then only you can learn. I am also learning. Just 2 years ago, I went back to college. I went and studied 1 month, and came back and learned. Actually, ये COVID में मेरा टीम को एक promise दिया था. We have opened showrooms in Bangalore, Karnataka. I don't know Kannada, so I told my team within 1 or 2 months I will learn 10 lines at least in Kannada. The reason I told my team is अभी मैं ना नहीं बोल सकता है ना, मैं सबके सामने बोल दिया. अभी आपको भगवान आशीर्वाद 1000 लोग के सामने बोल दिया. 1 महीने के अंदर एटलीस्ट 10 लाइंस इन कन्नड़ा. मेरा स्टाफ के साथ बात करने में एटलीस्ट हाउ आर यू, तू कैसे, तुम्हारा मम्मी पापा कैसे, घर पे सब लोग कैसे, बिजनेस कैसे चल रहा है अपना, इस ऑर्गेनाइजेशन गुड, आपको GRT पसंद है, ये सब पूछने के लिए मुझे कन्नड़ा भी मालूम नहीं है.
So I'm learning Kannada. I want to learn something in computers. What is all standard today? अभी सब लोग स्कूल में पढ़ रहा है, अभी इतना पढ़ा है, हम कुछ भी कंप्यूटर में इतना ज्यादा मालूम नहीं. I want to learn something more in computers also. No, I'm giving my example because I feel I want to train myself. So then if I want to train, I am the first example. Na, Bhagavan Ashirwad mein upar se, if I feel that I want to learn, then the whole company has to learn. There is no choice. If you keep training yourself, sir, you name the biggest person, Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Dhoni, Rajinikanth, koi bhi ho, believe me, they work harder than you and me. If Virat Kohli is doing such a good job, he's working 16 hours a day on his bowling, on his batting, on his running, on his physique. इतना बड़ा आदमी ट्रेनिंग करे तो आप लोग हम लोग करना ही चाहिए. There is no other way. You train yourself, train your team. God's grace, train together also. Train along with the team, nothing wrong. See if you can think little bit out of the box. Not only in jewelry, but there are so many industries that we can learn from. So use your money, use your leadership, use your talent, and bring up the whole economy. Because see, God's grace, when I speak to a jeweler, I'm not speaking to one person. आपका दुकान में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, I don't know. But I'm hoping that when you lift yourself, you lift those 100 people below you also. So we grow together. So we will grow together, and if your staff grows, definitely you will grow. 100%. So if you want to make money quickly, train your staff quickly. I don't want to take too much time here because like I said, I came on this forum only because I feel that आप लोग तो मेरा family है. You are like my brothers and sisters. And I firmly believe in that in the saying, no, that there is no such thing as I do well in life or you do well in life. We all have to do well together. The economy is so connected. There is no that one sector does well, one sector doesn't do well, or one area does well, one area doesn't do well. The whole industry must grow. God is kind. The world is very big. हम सब लोग के लिए पैसा है, सब लोग के लिए धंधा है, सब लोग के लिए मार्केट है. You just have to go work for it and get back. Is that enough, Kranti ji? Thank you so much. मैं कभी भी अभी पिक्चर देखूंगी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास क्या है, तो I'll remember मेरे पास टीम है. Thank you so much. We have got Kamal ji from Jamshedpur. He has one question, and I would like to just patch him in. Kamal ji, can you just come online, please? Am I audible? Yes. नमस्कार आनंद जी. आपसे एक छोटा सा हिंदी में सवाल है कि जीआरटी में कल्चर कैसा है, आपके वैल्यूज क्या हैं, जिसके कारण आज जीआरटी इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. सर थोड़ा कोशिश कीजिए, आप हिंदी में बोलिए प्लीज. नमस्ते जी. कमल जी आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा. हाँ आनंद जी, मैं कमल सिंघानिया हूँ, जमशेदपुर आभूषण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से. आई एम CEO in GJC से. Pleasure meeting you, sir. I'm also honored to meet you. GRT में कल्चर, हम कल्चर के ऊपर बहुत सोचता है जी. लास्ट 1 साल 2 साल में कल्चर का किताब भी लिखा है फॉर आवर ओन यूज. हम कल्चर के ऊपर बहुत सीरियसली लेते हैं वो बात को. भगवान आशीर्वाद, when the organization becomes above a certain size, see 100 आदमी है, 200 आदमी है, 500, 2500, when you have 200 300 staff, हम आंख देख के बच्चों लोग के साथ काम ले सकते हैं. But after a certain size, say 500 आदमी हो गया, 1000 आदमी हो गया, भगवान आशीर्वाद 5000 आदमी हो गया, only culture will save your company. Only culture. बिना कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं है. इफ यू हैव कल्चर, सब कुछ है. जीआरटी में कल्चर क्या है, तो
I know it's very cliche. हम बोलते हैं कस्टमर भगवान है, बिना कस्टमर कुछ भी नहीं है. वो सब कुछ बात करता है, सुनता है, पर जीआरटी में करता है जी. There is no, हम तो सोच ही दूसरा नहीं. हम कभी बोलता है दुकान में सब कुछ हम माफ कर सकते हैं. We will forgive everything. बट एक कस्टमर कंप्लेन दिया तो आप रेजिग्नेशन रख के बाहर जाओ, फिर बाद में बात करेगा. ग्रेट थिंग. नहीं, ये खाली एक लाइन है सर. आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल टेक सो मच एक्शन, बट इतना सीरियस हम सोचते हैं कल्चर के ऊपर. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. अपना दुकान में कस्टमर को अम्मा बुलाता है जी. ये कभी जोक होता है. आई स्टिल रिमेम्बर एक 18 इयर्स गर्ल, 20 इयर्स गर्ल, अरे जी क्या हमको अम्मा बुलाते हैं. हम बोलते हैं मैडम आप अपने सामने खड़ा है, बस आपका एज इंपॉर्टेंट नहीं है. So culture is very important, sir. But each community, each geographical area थोड़ा फर्क है. But आप बच्चों लोग के साथ कल्चर दिया तो आपका कंपनी ऊपर आने में 100% गारंटी. So nice, so nice. Anand ji, just one more question from Mr. Shubhang ji from Jaipur. Shubhang ji, क्रांति जी बस एक ही क्वेश्चन और लीजिएगा. हाँ, एक ही क्वेश्चन. नहीं तो शुभांग जी आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए शुभांग जी. हाँ. नमस्कार आनंद जी. नमस्ते जी, बोलिए. मैं श्री जी ज्वेलर्स जयपुर से बोल रहा हूँ. एक क्वेश्चन था मेरा कि वी ऑल फॉलो यू एंड रेस्पेक्ट योर ब्रांड एंड गेट टू लर्न फ्रॉम योर सक्सेस. हु इज इट दैट यू लुक अप टू एज मेंटर और गाइड? Very easy question, sir. My father. मेरा पापा जी. अभी जीआरटी में कुछ थी, वो बोलते हैं ना, पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, बाद में हिंदी में बोलता हूँ. एक बड़ा बिल्डिंग, यू सी अ वेरी बिग बिल्डिंग, से 100 फ्लोर्स, 200 फ्लोर्स, बट हम सब लोग फाउंडेशन भूल जाते हैं जी. वो फाउंडेशन इतना अच्छा है, इसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाया. तो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, अच्छा है, बट पापा ही फाउंडेशन है, सब कुछ पापा ही. हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ. आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग हिज टीचिंग, सर. My father is my mentor, my guide, everything, sir. Thank you, sir. Thank you. I would just like to say one thing about Rajendran sir ji. I was in Chennai for many years and बहुत साल पहले मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग मदुरई जा रहे थे और रात हो गई थी तो हम लोग लेट. somebody entered in the night, old gentleman. जब आए वो उन्होंने लाइट नहीं चलाई क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब होने थे. उन्होंने अपने मोबाइल से टॉर्च से लाइट अपना सामान रख के वो सो गए. सुबह जल्दी मतलब अर्ली मॉर्निंग जब मदुरई आई तो 5-6 लोग रिसीव करने के लिए आए. तो हमने उनको पूछा सर आप लगते हो कोई somebody very important person. तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक छोटा सा दुकान है जीआरटी नाम से, कुछ होटल्स है. तो ये जो हम्बलनेस हमने देखा, मेरे आज भी मैं जब याद आता है तो मेरे स्किन पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो ही वाज सो हम्बल कि he traveled by आनंद जी में disturb the co-passengers. तो ये humbleness सर आपकी पूरी फैमिली में हमें दिखता है. तो I'm sure, I mean, you are so lucky to have him as a father. And thank you so much for coming on this session. And thank you so much. And thank you for having me here. I hope that I also learn a lot from all of you. Absolutely, sir. Absolutely. Thank you so much. Over to you, Naveen. Yeah, hello everybody. गुड इवनिंग. मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा आनंद सर के बारे में. आनंद सर शायद नहीं पहचाने. मैं उनको लगभग 17 साल पहले जब मैं ज्वेलरी होलसेलिंग हैमर प्रेस किया तभी मैं मिला था. और उस समय से और उसको दुकान में काम करते हुए देख के, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कितने लोग गए हैं जीआरटी, लेकिन पहला जीआरटी जो टी नगर में था, उस जमाने में लोगों का ये कहना था कि द मैक्सिमम फुटफॉल पर स्क्वायर फीट पूरी एशिया में अगर कोई ज्वेलरी शॉप में है तो जीआरटी की टी नगर स्टोर में है, पूरी एशिया में. तो जितनी भी उनकी दुकान है पर स्क्वायर फीट जो दिन का फुटफॉल हो रहा है, ये बातें चलती थी कि पूरी एशिया में ऐसा नहीं है. एंड उस टाइम भी आनंद सर फ्लोर पे होते थे. उस टाइम भी हर कस्टमर जो ज्वेलरी खरीदता था, जो पैसा देता था, वो बकायदा एक छोटा हार या छोटा फूल लेके भगवान को चढ़ा के बाद में कस्टमर देते. आई रिमेम्बर दैट फ्रॉम दैट दोज डेज. एंड he is a true I mean this whole group, the GRT group, is a true lesson of humility.
जो हम हम्बलनेस बोलते हैं, एक्चुअली नाउन उसका ह्यूमिलिटी है। जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो एक्चुअली वॉक द टॉक करते हैं। जब भी वो IIJS में आते हैं, उसी सिंप्लिसिटी से वो अलग अलग गलियां IIJS की घूमते हैं, वही चेकर्ड शर्ट, वही सिंपल पैंट, वही सिंपल शूज। आई मीन सो मेनी पीपल अगर जानेंगे नहीं तो नहीं पता चलेगा कि ये आनंद सर है GRT के। तो ये उनकी खूबी है, जैसे उन्होंने बताया कि वी हैव टू स्टे ग्राउंडेड। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर हमने जमीन पे पैर रखा है, तो हम जितना चाहे छलांग मार सकते हैं। सो थैंक यू आनंद सर फॉर फ्लैगिंग इट ऑफ। एंड इनडायरेक्टली आपने इतना एम्फसाइज किया ट्रेनिंग पे कि आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ जूनियर ट्रेनर, इट हेल्प्स माय बिजनेस आल्सो। God's grace, I would just like to say one thing, Ji, with all your permission. Yeah, sure. See, God has been very kind. God's grace. We are what we are because of the blessings of our elders and our customers. Correct. So GRT is not just Rajendran bhai, Anand bhai, Radhakrishnan bhai. एक तीन आदमी के नहीं है. GRT is a family. So GRT is what we, each and every staff. एक एक काम करने आदमी GRT is important. एक एक काम करने vendor. एक एक काम करने कारीगर. Every single stakeholder is contributing to GRT. So I'm only taking the praise on behalf of everybody. तो अभी इतना हजार लोग के I'm just taking thanks for the thousands of people who work with GRT. Thank you, sir. God's grace and with all your blessings. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I'm sure your team and everybody is so happy because when you work for a great company, जब वो कल्चर कंपनी का आपके अंदर घुसता है और वो कल्चर आप घर पे लेके जाते हो ना, तो फैमिली भी प्राउड होती है कि मेरा लड़का यहाँ पे काम करता है। शादियां इजी हो जाती है। अगर कोई लड़का अच्छा काम करता है ज्वेलरी स्टोर में, वो ज्वेलरी स्टोर में उसका नाम बनता है, वो लड़के की शादी या वो लड़की की शादी बहुत इजी होती है। इसका रिपल इफेक्ट यू डोंट नो, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। व्हेन you build culture of the person, you become part of that whole organization. तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा हिंदी बोलने, बट मैं थोड़ा बहुत आज इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को GRT ट्यूटिकोरिन से पद्मा राजा ने मेरे को कल एक मैसेज किया कि सर व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश। मैंने बोला कि ये लार्जली ये हिंदी मीडियम है, तो हम इंग्लिश 25% बात करेंगे, 75% हम हिंदी बात करेंगे। So we'll flow along. मैं कल का क्विक रिकैप करता हूँ। I just want to, I also work for GRT. Yeah. I also work for GRT. Thank you. You're the debut worker, the head worker. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. So कल हमने क्या किया था, रिकैप में करता हूँ 2 मिनट में। कल हमने इंडिया का रिटेल का माहौल देखा था। We saw the environment of India कि हमारे पास कंपटीशन खाली ज्वेलर्स नहीं है, हमारे पास कंपटीशन मोबाइल से था, ट्रैवल से था, लग्जरी से था, ऑटोमोबाइल से था, ये सब से था। लेकिन आने वाले जमाने में बिकॉज लोग शायद इतना ट्रैवल नहीं करेंगे, बिकॉज लोग शायद रेस्टोरेंट्स में कम जाएंगे, बिकॉज लोग थिएटर में कम जाएंगे, मनी इज गोइंग टू बी सेव्ड। हम जो बिजनेस में हैं, वो जो प्रोडक्ट हमारा है, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। वी आर लकी, वी आर इन द बिजनेस जहां पे अडॉर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ होता है। तो मेरा व्यू है, और आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल एग्री, कि अगर हमने अपना किला स्ट्रांग पकड़ के रखा तो आवर बिजनेस कैन ओनली गो बेटर। सो कीप द फेथ। That was the whole gist of yesterday. India retail किया, insights किया, फिर जो आनंद जी ने बोला कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल ये भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्ड कैसे होता है। हाउ डू यू बिल्ड अ कल्चर? एंड वी वांट कि हर आदमी कल्चर ऑफ ओनरशिप बिल्ड करे, मालिक जैसा सोचे, खर्चा बचाए धंधा बढ़ाए, खर्चा बचाए धंधा बढ़ाए। किस तरह से ये होगा? वी सेड देयर आर 5 टूल्स, 5 टूल की बात की थी हमने। बोला था रिचुअल्स, क्या चीज हम रोज करेंगे, सेलिब्रेशन, स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन, ट्रेनिंग। ये 5 टूल्स हमने बोला था कि अगर हम साथ में ये 5 चीज करते हैं ना, तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बिल्ड होता है। और कल्चर इज किंग। कंपटीशन कैन कॉपी प्रोडक्ट्स, कंपटीशन कैन कॉपी एड्स, कंपटीशन कैन कॉपी सेलिब्रिटी, सब कुछ कंपटीशन कॉपी करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर बहुत तो कॉपी नहीं हो सकता है। सो फ्यूचर में कल्चर इज किंग एंड कस्टमर इज क्वीन, एंड दैट्स द वे हमको लाइफ में आगे जाना पड़ेगा। ओके, उसी टाइम पे हमने एक वीडियो भी देखा जहाँ पे अमिताभ जी ने कहा था कि इंडिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक ऑलवेज नेगेटिव देखते हैं, एक नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढते हैं। तो हम आज जो स्थिति पे है, हमको वो डायलॉग कल की याद रहनी चाहिए और आगे हम इस तरह से आगे जाएंगे। ओके, आज का जो सब्जेक्ट है, ओके, शुरुआत में करने वाला हूँ सब्जेक्ट जो है CRM और कस्टमर सर्विस। ओके, जब हम CRM की बात करते हैं, सबके दिमाग में ये आता है कि CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पे जो CRM में शेयर करने वाला हूँ या जिसके बारे में बात करता हूँ, the CRM, the R stands for something else. The R stands for retention, not relation. Customer retention management. Okay? ये क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट?
बिकॉज हमारे बिजनेस, तो ज्वेलरी बिजनेस में देखा गया है कि जो ग्राहक आपके साथ जुड़ता है और वो आपसे जुड़ते जाता है, तो अगर आपने 5 साल से आपकी दुकान है और 5 साल में आपके पास 2000 ग्राहक जुड़ गए हैं और आपके पास आ रहे हैं, अगर हमने ये 2000 ग्राहक के ऊपर फोकस किया बराबर से और इनको ही रिटेन करने की कोशिश की, मे बी हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। बट मेनी अ टाइम हम लोग ग्राहक अंदर लाने में हम इतना पैसा एडवर्टाइजिंग, पीआर, सोशल मीडिया, इवेंट्स, एग्जीबिशंस पे करते हैं कि हम भूल जाते हैं जो ग्राहक मेरे पास है उसको मैं कैसे ले चलूं। सो सीआरएम इन टर्म्स ऑफ अ मार्केटिंग टूल जो मैं बोल रहा हूं, उसको कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट कहते हैं। और वो कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट बराबर करने के लिए हमारा कस्टमर सर्विस जो है दुकान के अंदर, सेलिंग तो हम सब करेंगे, लेकिन कस्टमर सर्विस जो एक एक इनविजिबल सर्विस है जो दिखती नहीं है, वो हमको दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, करके करना पड़ेगा। तो हम सीआरएम और कस्टमर सर्विस देखेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत we will understand the joy of selling. सब लोग बोलते हैं there should be joy in selling. We'll understand what the joy of selling is, and the whole idea of doing all of this, पाठशाला का पूरा गोल यही है जो आनंद जी बोल रहे थे कि पैसा हमारे पास है तो we are strong with financial capital, दुकानें हैं तो प्रॉपर्टी कैपिटल भी है, लेकिन ये जो आदमी है ना जो हमारे साथ जुड़ जाता है उसको भी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उस कैपिटल को रिटेल लैंग्वेज में बोलते हैं HRC, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। और जस्ट लाइक any other capital, just like risk if it gets old, just like security and software has to be maintained, even human resource capital को nurture करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। तो human resource capital जो है, जो आदमी है, human resource मतलब आदमी, हमारी टीम का आदमी, हम खुद, ओके, हम खुद अगर हमको अपने आप को भी मेंटेन या रिफाइन या ऑयलिंग करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। जो उन्होंने भी कहा कि उनकी कंपनी में वो लोग ट्रेनिंग पे खास फोकस करते हैं। फॉर पीपल हु आर नॉट डूइंग टुमारो ट्रेनिंग, जस्ट एज अ बेंचमार्क, ऑल इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपनीज, जितनी भी इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपनी है, उनका मुद्दा है कि साल में जो भी हमारा टीम है ना, उसका 2 पगार हम अलग रखते हैं जो उस पे इन्वेस्ट करेंगे उसके ट्रेनिंग, लर्निंग और ग्रोथ के लिए। तो पगार तो उसको देते ही हैं, लेकिन ओवरऑल 2 पगार, 2 महीने का पगार वो लोग दिमाग में रखते हैं। इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स, वी आर इन इंडिया, मे बी ऑल ऑफ अस आर नॉट लग्जरी, तो हमको एक पगार तो दिमाग में रखना पड़ेगा, वेदर इट इज द बॉस, वेदर इट इज यू योरसेल्फ। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे को आगे जाना है, मेरा जो भी पगार है पूरे साल का, महीने का एक पगार मेरे को अपने पे खर्चा करना पड़ेगा, तो ही मैं नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आगे जाने की सोच सकता हूँ। प्लीज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, बी सेल्फिश, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आगे जाते हुए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। ओके, बेसिक्स ऑफ कस्टमर सर्विस आपको दिखाने के पहले मेरे को आपको वी कैन सी द स्क्रीन, राइट सुदर्शन? स्क्रीन इज विजिबल? या स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल? या स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके ओके, ग्रेट। ओके, सो कस्टमर सर्विस का बेसिक समझाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर सर्विस कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, इज इट जस्ट सेलिंग? इज दैट कस्टमर सर्विस? मैंने चाय ऑफर किया वो कस्टमर सर्विस है, मैंने स्माइल किया वो कस्टमर सर्विस है? क्या है कस्टमर सर्विस? हम तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन कस्टमर सर्विस इन टोटलिटी क्या है वो हम देखेंगे, और इसकी जरूरत क्या है वो भी देखेंगे। ओके, कस्टमर सर्विस, अगर ग्राहक आपसे खुश है, सेटिस्फाइड है, तो वो अपने वॉलेट के थ्रू रिप्लाई करता है। वॉलेट के थ्रू मतलब अपनी जेब के थ्रू, वो आपके वहां से माल खरीदता है, ज्यादा खुश हुआ और माल खरीदता है। लेकिन हमारा गोल एज सेल्स पीपल इज जस्ट नॉट टू सेल। हमको खाली बेचना नहीं है, हमको ग्राहक को अपना बनाना है। हमको नीचे क्या करना है, लास्ट नीचे देखोगे तो ब्रांड लॉयल्टी बनाना है कि ये आदमी घूम फिर के कहां भी जाएगा ना, घूम फिर के मेरे पास आना चाहिए। ये एक्चुअली एक ज्वेलरी सेल्स प्रोफेशनल का गोल होना चाहिए। धंधा तो होएगा, बट धंधा के साथ अगर मैंने अच्छी कस्टमर सर्विस दी तो ग्राहक मेरे पास ही आएगा और कहां नहीं जाएगा। इसका ये करने से क्या मैं को दिखाता हूं क्या होएगा। आई विल शो यू रिजल्ट फर्स्ट, फिर हम लोग कैसे वो करेंगे सेकंड पे जाएंगे। बिकॉज अगर आप रिजल्ट को, जैसे मैंने कल बताया आपको कोई भी चीज पे भरोसा, अगर आप फुल बिलीफ में जाओगे, विश्वास से जाओगे, तभी जाओगे जब आप वो देखोगे कि हाँ ये पॉसिबल है। तो आई एम गोइंग टू मेक यू थिंक अभी ऑन सम थिंग्स, एंड
यू विल अग्री टू द एंड रिजल्ट। मैं आपको जबरदस्ती कुछ नहीं देने वाला हूं, मैं आपको छोटा कुछ एक सैंपल दिखा रहा हूं धंधे का, आपके धंधे का, और अगर वो आप उस एक्सरसाइज से ये बराबर समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपका कस्टमर सर्विस लेवल ऑटोमेटिकली 100% बढ़ जाएगा। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, काला स्क्रीन है, मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जो लोग 1000 लोग हमसे जुड़े हैं, ये 1000 लोग जो जुड़े हैं ना, ये अलग अलग टाइप के रिटेल फॉर्मेट के लोग हैं। ओके, हम सब अलग अलग रिटेल है। देख, कोई आदमी ब्रांड के साथ काम करता है, कोई आदमी फैमिली ज्वेलर के साथ काम करता है, कोई आदमी शायद एकदम हाई एंड लग्जरी स्टोर में है। सो रिटेल में भी ना हर आदमी आपका कंपटीशन नहीं है। आप कौन से कैटेगरी में वो डिसाइड करो, आपकी कैटेगरी का कंपटीशन वो है। ओके, तो रिटेल में भी धंधा करने का 3 या 4 अलग अलग तरीका है। मैंने क्या किया है, मैंने एक एवरेज निकाला है कि एक ग्राहक, ओके, ये एक्सरसाइज समझने के बाद आप कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस भी समझ जाओगे। आपके दुकान में अगर आप एकदम हाई एंड स्टोर हो ना, ओके, लाइक अगर दिल्ली में बोलूं, हजूरीलाल बोलूं, खन्ना बोलूं, ऑल दिस काइंड ऑफ हाई एंड स्टोर्स, वहां पे जो ग्राहक आता है ना, वो डायमंड ज्वेलरी लेने आता है। वहां का ग्राहक का जो एवरेज परचेस होता है, वहां पे ग्राहक जो खरीदते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख की आइटम खरीदते हैं, बिकॉज वहां पे कुछ जो अच्छी चीज है ना, वो 3-5 लाख के शायद इतनी नीचे होती नहीं है। दैट इज द एवरेज प्राइस ऑफ लाइक अ हाई एंड ज्वेलरी स्टोर। लेकिन अगर मैं मास ज्वेलरी स्टोर देखूं, ओके, जैसे मैं गोरखपुर भी जाता हूँ, वहां पे हरिप्रसाद गोपी कृष्ण का लेबल है, वहां पे भी लोग ज्वेलरी शॉपिंग करने आते हैं, गांव से आते हैं, बस्ती पदरुना से शॉपिंग करने, सुबह को लाइन में खड़े रह में भी आते हैं। शायद वहां का कस्टमर मास है और उसका परचेज शायद 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम है। अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूं और मैं बोलूं कि छोड़ो हाई एंड ज्वेलरी को, मास पकड़ते हैं हम, ओके, अब मास एवरेज कस्टमर जो आपके पास आता है, उसका एवरेज परचेस जो होता है ना, लगभग कोई दुकान में अगर 200 लोग आए, किसने 4 लाख का लिया, किसने 6 लाख का लिया, किसने 25 का लिया, किसने 70 का लिया, किसने 1 का लिया, एवरेज परचेस वैल्यू मैंने रखा है 50,000 रुपया। ओके, जो ग्राहक आपके वहां से आके कुछ लिखेगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक वैल्यू है। मैंने कुछ ऊंचा नहीं लिया है। सोने का भाव आज 47,000 है मेरे यहाँ, उसके यहाँ पे 10 ग्राम सोने के आसपास का मैंने लिया है, उससे भी कम, बिकॉज लेबर चढ़ेगा, जीएसटी चढ़ेगा। मैं 50,000 पकड़ रहा हूँ एक ट्रांसैक्शन का, एक कस्टमर का, जो आपका अच्छा कस्टमर है। जब मैं उन सबको पूछता हूँ कि आपके दुकान में जो आपका कस्टमर जो है, जो नॉर्मल कस्टमर है, वो आपके पास एक साल में कितनी बार आता है, तो कुछ लोग बोलते हैं, सर ये जो लेडीज है ना, वो तो हर महीने आती है, कुछ ना कुछ लेके जाएगी, छोटा आइटम बड़ा आइटम आती है। मैं बोला कि नहीं, सपोज हर लेडी थोड़ी रोज आती है, नॉर्मल में एक औरत आपके वहां कितने बार आएगी, तो वो लोग बोलते हैं कि यार कुछ लेडीज लोग रोज आते हैं, एवरी मंथ आते हैं, कुछ लेडीज लोग हर 2-3 महीने में आते हैं, ऐसे मिनिमम सर 3 बार तो आती है। कोई भी हमारी कस्टमर है ना, साल में 2 या 3 बार एवरेज पकड़ो आ ही जाती है। तो मैंने बोला चलो मैंने 3 बार पकड़ा है। नंबर ऑफ टाइम्स ही और शी विजिट्स द स्टोर एनुअली, साल में 3 बार आपका ग्राहक आपके दुकान में आएगा। 50,000 का उसका एक ट्रांसैक्शन होता है, अगर वो 3 बार आएगा या आएगी, वो कस्टमर साल में आपको 1.5 लाख का धंधा देके जाता है। ओके, ये धंधा, ये अमाउंट बहुत छोटा है। मैंने एकदम बेसिक लेवल का कस्टमर पकड़ा, एकदम नीचे। आई अज्यूम वी आर अ मास स्टोर एंड वी आर ऑल 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, वो छोटी दुकान है जहाँ पे गोल्ड ज्यादा बिकती है। मैंने उतना लो एवरेज पकड़ा है। अगर साल का उसका परचेस वो ग्राहक का 1.5 लाख रुपया है, और मैं देख रहा हूं कि मेरा ये ग्राहक सपोज 27 साल का है या 28 साल का या 29 साल का, नई दुल्हन है। ओके, हमने देखा है कि जो लेडीज ज्वेलरी खरीदती है ना, उनका शौक, एक्चुअल शौक ज्वेलरी खरीदने का, खुद बाय खुद शादी के टाइम पे शुरू हो जाता है। काफी लेडीज पहले भी लेती हैं, लेकिन शादी के बाद गहने पहनने का, गहने दिखाने का, सोशलाइज करने का, रिश्तेदार के पास जाने का, अरे खाली खाली गले के क्यों गई, हाथ में कंगन क्यों नहीं डाला, ये सब चीजें ना शादी के बाद शुरू होती है। और इंडिया में अगर मैं पूछूं 25 साल पकड़ू ना, लड़कियां तो 22-23 साल पे कर लेती हैं, लेकिन 25 साल भी मैंने अगर पकड़ा, 25 साल से लेके जब तक वो लेडी, जो शादीशुदा लेडी ग्रो होते जाती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, मदर बनती है, फिर ग्रैंड मदर बनती है, 55 साल होता है, तो फ्रॉम 25 टू 35 टू 55 ईयर्स, ओके, वो 30 साल तो कम से कम उस ज्वेलर के पास जाके ज्वेलरी लेगी, मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ 25 से 55 साल।
शायद वो 60 साल पे भी जाए, 70 पे भी जाए, अपनी भूख ले लेने जाए, वो भी चालू ही होएगा। मैं एकदम मिनिमल पकड़ रहा हूँ, 30 साल का उसका शॉपिंग लाइफ है, ज्वेलरी शॉपिंग लाइफ। अगर मैं 30 साल से मल्टीप्लाई करूँ ना, मैं कुछ इन्फ्लेशन नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं पकड़ रहा हूँ कि अगले 5 साल में सोना 1.25 लाख होएगा, वो सब कुछ नहीं पकड़ रहा हूँ मैं वही वैल्यू पकड़ के बैठ रहा हूँ। तो ये ग्राहक जो मेरा 50,000 का जो मास कस्टमर है, इसका वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू 45 lakhs है। Do you realize the person who's buying 50,000 rupees from you, she's actually worth 45 to 50 lakhs actually. When is she worth 45 to 50 lakhs? कभी वो 50 लाख की कस्टमर है अगर हमने उसको उसी ह्यूमिलिटी से, उसी हम्बलनेस से, उसी सेवा की भावना से, जैसे आनंद सर कहते हैं जैसे हम जीआरटी में करते हैं, अगर उस तरह से हमने उसके साथ काम किया, वो ग्राहक जो मेरे छोटे ग्राहकों में है उसका वैल्यू 50 लाख है। लेकिन ऑनेस्टली इन द काउंटर क्या होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि वो ग्राहक खरीदेगा, यार 2 ग्राम खरीदती है, इतना आवाज करती है, इतना चीज दिखाना पड़ता है। कभी कभी हम इरिटेशन में छोटे ग्राहक को हैंडल नहीं करते। कभी कभी एक आध ग्राहक हमारे गलत सर्विस से जब टूटता है तो हमको खराब ही नहीं लगता है, ठीक है ना यार, गलती हो गया, उसमें क्या हुआ सर, डोंट वरी, आई गिव यू 3 लाख का सेल दूंगा आपको, मेरे पर छोड़ दो। वो ग्राहक जो टूट गया, हम उसका बॉदर ही नहीं करते हैं कि हम तुमको एक और ग्राहक 3 लाख का लिख देंगे, आप फिक्र मत करो। प्लीज अंडरस्टैंड, 50,000 का ग्राहक नहीं टूटा है, 50 लाख का ग्राहक टूटा है। और बात 50 लाख पे बंद नहीं होती है, बात एक कदम और आगे जाती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। रिसर्च ने बताया है कि अगर वो ग्राहक दुकान से बाहर निकलते बहुत ही खुश होकर निकलता है ना, तो कम से कम 8 लोगों को अपनी खुशी और अपना ज्वेलरी दिखाता है, कम से कम एक। एवरी ईयर, एवरी परचेस दैट अ क्लाइंट मेक्स, व्हेन ही और शी गोज आउट ऑफ योर शॉप, और वो घूमता है, तो वो कम से कम 8 लोगों को बताता है, देख मैंने कंगन लिया, मेरी डिजाइन देख। इस तरह से 8 लोगों को बताता है। जब वो 8 लोग उसको कुछ पूछते हैं तो वो एक्सपैंड करके बताता है, बहुत मजा, इतनी गर्दी थी वो दुकान में, बाप रे बाप कितना भीड़ भड़का था, कैच बनाने को इतना टाइम लगा, लेकिन क्या स्टॉक था, देखने लायक है, मैं 3 महीने के बाद वापस जाने में, तू भी चल मेरे साथ। तो अ हैप्पी कस्टमर टॉक्स टू 8 पीपल। इफ द कस्टमर इज अ नाइस पर्सन, अगर वो अच्छा आदमी है और अगर वो जेन्युइन आदमी है और वो एक्चुअली आपके सर्विस से खुश है, वो 8 लोगों में से गारंटीड उस साल ना 1 जन तो आएगा ही। सो वो ग्राहक हर साल 8 लोग को बोल रहा है, 8 में से 1 ग्राहक को वो अंदर खींच रहा है हर साल। तो अगर वो 30 साल शॉपिंग करेगा तो 30 साल कम से कम वो 30 ग्राहक को लेके आएगा, इवन इफ द पर्सन इज हम्बल एंड नॉट सोशल। छोटे से छोटा ग्राहक जो बहुत खर्चा नहीं करता है, जो बहुत शो ऑफ नहीं करता है, जो किटी पार्टी पे नहीं जाता है, जो लेडी किटी पार्टी पे जाती है उसके कारण और बहुत भीड़ आएगी। मैंने यहाँ पे उस सिचुएशन को एकदम बेयर मिनिमल पे पकड़ा है। अगर ये ग्राहक हर साल 8 जन से बात करता है और इसके कारण अगर मेरे दुकान में एक ग्राहक आया, ये ग्राहक जो मेरा सिंपल 50,000 ग्राहक है ना, उसका वैल्यू ना, लाइफ टाइम वैल्यू ये ग्राहक का 10 करोड़ प्लस है बॉस। आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, 50 लाख इसका, 50 लाख जो एक ग्राहक वो नेक्स्ट ईयर देगा, 50 लाख एक ग्राहक जो नेक्स्ट ईयर देगा, 50 लाख, 10 करोड़ बहुत कम अमाउंट मैंने पकड़ा है, ये शायद 20-25 करोड़ के आसपास का है। मेरे को वो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से करने को मेरे को मेहनत नहीं करनी थी, बिकॉज वी आर वेटिंग हियर, बट दिस इज रियलिटी। तो जो 50,000 का ग्राहक हम छोटा समझते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा ना कस्टमर सर्विस दिखना चाहिए उसको, थोड़ा वो एहसास होना चाहिए। सेल्स इज समथिंग एल्स, कस्टमर सर्विस इज समथिंग एल्स। हमारे धंधे में हम सेल्स के भूख में, सेल्स के ड्रिवन में हम शायद कस्टमर सर्विस भूल जाते हैं। यही चीज एयरलाइंस में होता है। मैं एयरलाइन में ये सब बंद होने के पहले मैं हफ्ते में कम से कम 6 बार प्लेन में बैठता था, 6 बार। आई शुड टेक 3 ट्रिप्स एवरी वीक टू गोरखपुर, टू भुवनेश्वर, टू बुलंदशहर, 3 ट्रिप्स एवरी वीक। मैंने देखा कि एयरलाइन में भी यही हिसाब किताब है। जो लेडी को एयर होस्टेस का जॉब दिया है, उसको मैं बटन दबाता हूं फॉर समथिंग, वो आती नहीं है, क्योंकि शी इज सो बिजी सेलिंग बिस्किट्स, चिप्स, कॉफी, उसको सर्विस देना ही नहीं है। तो एयरलाइन में भी एयर होस्टेस ना सेल्स एयर होस्टेस हो गई है, सर्विस तो हटा दिया उसके प्रोफाइल से। सो वो एक चक्कर उसको इतना ये हो गया कि मेरे को सेल करना है, सेल करना है, विल यू हैव समथिंग, विल यू हैव समथिंग, यू आर नॉट रेडी टू सर्व मी, यू वांट टू सेल टू मी। तो ये जो एयरलाइन के अंदर रह के जो हमको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा है ना, इज बिकॉज
उनका जो कल्चर है, उनका जो अंदर का जो स्वभाव है, वो फॉर सम रीजन सर्विस से सेल्स पे बदल गया है। वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग ज्वेलरी बेचते हैं। ज्वेलरी इज रिलीजन इन इंडिया, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो जब हम ज्वेलरी बेचते हैं, सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, सेल 100% हम ट्राई करें। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू सेल्स, यू हैव टू डू, दैट्स व्हाई यू आर देयर। बट सर्विस में ना कोई माफी, लाइक आनंद सर सेड के मैं करूं नहीं करूं अलग बात है, लेकिन हम माफ नहीं करते हैं जो कस्टमर के साथ बराबर व्यवहार नहीं करता है। फॉर अस कस्टमर सर्विस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट जीआरटी। तो इवन फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर ये काम हमने बराबर किया तो हमारे जो 2000 ग्राहक है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, कोई बड़ी एड देख के कहाँ नहीं जाएंगे, वो लोग हमारे पास ही रहेंगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम एज सेल्स पीपल की। ओके, ना हाउ डू वी डू दैट? ओके, ये किस तरह से हम जिम्मेदारी पूरी करें? और ये कस्टमर सर्विस मतलब चाय कॉफी तो देते ही है, पूछते हैं हम। चाय कॉफी कस्टमर सर्विस नहीं है, चाय कॉफी कस्टमर सर्विस का एक टूल है। एक मैं वॉर पे जाता हूं तो बंदूक टूल है, टैंक टूल है। इट्स नॉट कॉल्ड वॉर, वॉर इज व्हेन आई फाइट, वो टूल है। तो सेम वे जब हम चाय ऑफर करते हैं, कॉफी ऑफर करते हैं, ठंडा ऑफर करते हैं, बिस्किट ऑफर करते हैं। बांद्रा में एक दुकान है, बहुत फेमस डायमंड की दुकान है, वो एल्को से सैंडविच मंगा के खिलाता है कस्टमर को। ओके, तो ये सब जो है ना, ये सामान है। कस्टमर सर्विस एक भावना है। ओके, वो भावना सामने प्रकट होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज स्टार्ट डूइंग सेल्स, एड एन एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस जो आपको भी दिखे, सामने वाले को भी, ये बॉस ये तो मेरे को ज्यादा मिल रहा है, ये इंटेंजिबल है। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक यू नेक्स्ट स्टेप टू कस्टमर सर्विस। ये कस्टमर सर्विस होता क्या है एंड हाउ डू यू एक्सेल? कि कस्टमर सर्विस में मैं एक्सेलेंट कैसे बन जाऊं? ओके, सभी लोग बोलते सर ये तो आता है, अभी आप क्यों मेरे को इतनी पाठ पढ़ा रहे हो, कुछ और इंटरेस्टिंग बोलो ना। बहुत चीज हम करते 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 इतने बोर हो जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक कस्टमर सर्विस का पाठ पढ़ाने के पहले एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो एक छोटे बच्चे का है। ओके, ये बच्चा गोल्फ खेलने की रुचि रखता है, उसको गोल्फ खेलने का, उसने टीवी में गोल्फ देखा है। उस सिटी का टॉप गोल्फर, जो सबसे अच्छा गोल्फर है, उसने उस सिटी के मार्केट के बीच में डेरा लगाया और उसने बोला मैं सबको गोल्फ में कितना अच्छा गोल्फ खेलता हूँ, गोल्फ में आपको दिखाता हूँ। तो सभी भीड़ जमा हो जाती है, ये बच्चा भी जाता है वो देखने। बच्चे को लगता है गोल्फ में है क्या, ऐसा उठाया और ऐसा घुमा दिया। लेकिन गोल्फ इतनी सिंपल चीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक क्रिकेट, इट्स नॉट लाइक फुटबॉल के क्रिकेट में है बॉलिंग करने का, बैटिंग करने का, वहां मारने का। गोल्फ थोड़ा टेक्निकल स्पोर्ट है। फुटबॉल जैसा वहां पे गोल वैसा नहीं है। सेम वे लाइक अ इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्री एक टेक्निकल इंडस्ट्री है, हमारा सेल्स पर्सन एक टेक्निकल सेल्स पर्सन है, हमारा सेल्स पर्सन सेल्स प्रोफेशनल बन सकता है अगर वो सीखने का कोशिश करे। तो ये बच्चे को भी लगा कि गोल्फ में है क्या, मैंने उठाया और घुमा के मार दिया, लेकिन उसको पता चला कि इतना इजी नहीं है। आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो। द वीडियो इज जस्ट टू पुट फॉरवर्ड ये पॉइंट कि हमारा बिजनेस इतना इजी नहीं है, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। ये वीडियो का आवाज, ये इंग्लिश में है वीडियो। बातें भी जो हो रही है ना, गुरु और शिष्य की विस्पर में हो रही है। आप अगर इसको कुछ आवाज भी नहीं होता ना, आप ये वीडियो समझ जाएंगे। तो आप देखो जरा ये वीडियो क्या है। Video is playing, Sumit? Yeah, it's playing, Naveen. Yeah. Very much late. I presume upon your goodwill, request the services of volunteers. Anyone? Oh. Hello. What's your name? Francis. Now, what this is? It is. Have a bath.
ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये बच्चा जिसको लगा कि इसमें है क्या ये गेम में, ऐसे ही बैट को तो मेरे को बैटिंग आता है ये भी कर दूंगा, लेकिन पहली बार जब इसने किया तो नहीं कर पाया। हम भी जब बच्चे होते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम जब भी बैट को ग्रिप करते हैं ना, हम बैट को ग्रिप इस तरह करते हैं, हम एक उंगली ना यहाँ रखते हैं, हमको लगता है इससे अच्छी तरह मारने को होगा, सपोर्ट लेते हैं। इट्स ओनली जब हम कोचिंग पे जाते हैं तभी हमारा सर हमको सिखाता है कि बॉस यहाँ मत रख, जब ये सीजन बॉल से खेलेगा और ऐसा करेगा ना तो तेरा उंगली टूट जाएगा। दैट्स व्हेन वी आर टॉट के हाथ को ऐसे पकड़ना चाहिए बल्ले को, तो आप यहाँ वहां वहां पूरा घुमा सकते हो, तो आप स्क्वायर कट भी मार सकते हो, आप हुक भी मार सकते हो, आप कवर ड्राइव भी मार सकते हो। लेकिन कोई अगर हमको सिखाएगा नहीं, वो बचपन की आदत अगर बदली नहीं ना, तो हम एंड तक ना उंगली यहाँ पकड़ के खेलेंगे, एक दिन हमारा उंगली टूटेगा ही। सेम वे यहाँ पे भी वो गोल्फर ने इसको एक टेक्निक बताया कि किस तरह से बरसी, वो गोल्फ को स्टिक को स्पेन में बरसी बोलते हैं, किस तरह से उसको होल्ड करने का, वो गोल्फ के क्लब को। पहली बार वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेकंड टाइम वो सक्सेसफुल हुआ। okay? मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो लड़का सीखा नहीं है अभी तक, उसने मार तो लिया, इट कुड बी बिगनर्स लक, ओके, कि शुरुआत में किस्मत चमकती है तो मार दिया उसने और हो गया। अगर उसको मैं अकेले में लेके वापस उसको बोलूं कि 5 बार मार के बता वो शॉट, वो नहीं मार पाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार मारेगा, शायद नहीं मार पाएगा। कभी वो 5 का 5 बार मार पाएगा जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो हमारा धंधा भी जो ऐसा है ना, अगर हमको लगता है हम रोज तो सेल कर रहे हैं, हमको आगे आगे आगे, अनलेस वी प्रैक्टिस कस्टमर सर्विस, अनलेस वी प्रैक्टिस हाउ टू स्माइल, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब स्माइल का कोई प्रैक्टिस करता है? शीशे में खड़े रह स्माइल देखो आप कैसे लग रहे हो, क्या जब भी आप कस्टमर के सामने स्माइल करते हो क्या वो जेन्युइननेस आ रहा है? ये सारी चीजें काउंट होती है कस्टमर सर्विस में। तो हाउ डू यू एक्सेल इन कस्टमर सर्विस? कुछ स्लाइड्स हैं, मैं स्लाइड 20 सेकंड्स आई विल बी स्पेंडिंग ऑन ईच स्लाइड और मैं आगे जाऊंगा। मेरा उम्मीद है कि ये सब आप अपने तरह से थोड़े पैमाने पे आप कर रहे हैं। मैं आपको रिपीट क्यों करके लेके जा रहा हूं? बिकॉज मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि आप भूले नहीं, और अगर कोई नहीं कर रहे हो तो ये काम करो। पहली चीज, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। बहुत सारे लोग बड़े ग्राहक को देख के है ना, कभी देखते रहे तो यार व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज और इतना बड़ा कड़ा पहन के आया कोई, ये तो पॉलिटिशियन लग रहे हैं, बड़े आदमी लग रहे हैं, मैं करूं कि नहीं करूं कि मैं बॉस को बुलाऊं? ओके, सम पीपल गेट नर्वस। ओके, कभी भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस मत छोड़ो। सबसे पहला चीज होता है कॉन्फिडेंस। आपका लेवल एज अ सेल्स पर्सन आपको पता नहीं है कितना आगे निकल गया। खुद के घर पे जब भी जब भी क्रिकेट होता है या आज का जो माहौल है, हम लोग नेटफ्लिक्स पे टीवी देखते हैं, इस पे देखते हैं, कभी कभी हमको लगता है घर पे बड़ी टीवी होनी चाहिए कि 30 सेंटीमीटर की टीवी 35 से नहीं चलेगी, हमको 55 सेंटीमीटर की 55 इंच की टीवी चाहिए। जब हम घर पे बात करते हैं बड़ों से पागल हो गया क्या, ठीक है 35 इंच की, कौन खरीदेगा 2 लाख की टीवी? जरूरत ही नहीं है। घर पे हमको सबके फैसिलिटी के लिए 2 लाख की टीवी अगर हमको चाहिए, वहां पे घर पे हमारा चलता नहीं है। लेकिन दुकान के अंदर, बिकॉज आपके पीठ पे जीआरटी का लोगो है, आप जीआरटी के छत्र छाया में है, वो सब आपके पास है, तो ग्राहक अंदर आता है ना आपके बोलने पे, आपके एडवाइस पे, आपके कॉन्फिडेंस के साथ। ग्राहक 17 लाख का भी सामान लेके जाता है, बोले आपको बराबर लगा ना, मेरे को तो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा ना, आप बोलोगे तो मैं और नहीं मैडम परफेक्ट है, डोंट इवन गो, ये परफेक्ट है आपके लिए। तो 17 लाख का सेट जीआरटी के दुकान के अंदर आप जो कॉन्फिडेंस से बेचते हैं, और घर पे 2 लाख का टीवी आपके बोलने पे कोई घर का सुनता नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ब्रांड में या जो फैमिली ज्वेलर के साथ आप काम कर रहे हो, वो फैमिली ज्वेलर के नाम का, उसके एक्सपीरियंस का, उसके ट्रस्ट का, विश्वास का बहुत भारी वेटेज है, और वो वजन आप अपने कंधे पे लेके जा रहे हो। वो वजन भी है और वो कॉन्फिडेंस भी है। तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रखना, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है कस्टमर आपसे खरीदेगा कि नहीं। एटीट्यूड भी ऑलवेज हाई होना चाहिए। वी शुड हैव ग्रेट एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सुबह में हमको स्माइल दिखना चाहिए, सामने वाले कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ मैं सही जगह पे आया हूँ। कभी भी कस्टमर आएगा, फोकस कस्टमर पे करो, मोबाइल को बाजू में रखो। ओके, व्हाट हैपेंस इज वी आर डीलिंग विद अ कस्टमर, और पीछे से हमारा दोस्त हमको कुछ इशारा कर रहा है, हम वहां भी देख रहे हैं, कस्टमर को भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, कस्टमर को भी देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स नॉट गुड। ज्वेलरी का कस्टमर बहुत ही फिनिकी कस्टमर है। आपको लगेगा उसको डिजाइन पसंद नहीं आया, नहीं कुछ जमा नहीं, बट एक्चुअली उसको आप पसंद नहीं आए हो। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि आपने उसको इज्जत नहीं दी,
आपने कुछ उल्टा, मैंने तो कुछ उल्टा बोला ही नहीं। आपने उल्टा नहीं बोला, लेकिन सही भी तो कुछ नहीं बोला। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार लग ही रहा था कि आपको उससे कम और दोस्त के तरफ आपका ध्यान ज्यादा है। सो फोकस ऑन योर कस्टमर, बी प्रॉम्प्ट। अगर आप किसकी मदद मांगोगे, जस्ट मेक श्योर द पर्सन कम्स प्रॉम्प्ट। मेनी टाइम्स यू मे वांट अ थर्ड पर्सन टू कम इन, ओके, डोंट मेक द कस्टमर वेट। कस्टमर का रिपेयर है, हाँ आया, ऊपर से मेरे को मंगाना पड़ेगा, एक मिनट मैडम मैं मंगाते हूँ, हम और कुछ में घुस जाते हैं, पहले वो ना नहीं करते हैं। जो भी सर्विस कस्टमर को चाहिए, अगर कस्टमर आपके सामने रखा है, फर्स्ट यू टॉक टू द कस्टमर, देन यू टॉक टू द फोन, देन यू टॉक टू द कलीग, देन यू टॉक टू योर मैनेजर। पहले ग्राहक के और ही आपका ध्यान जाना पड़ेगा। मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, ओके। अगर आपका स्माइल उसको दिखा, अगर आपकी आंखों में चमक दिखी, अगर आपका यूनिफॉर्म बराबर दिखा, अगर आपने नमस्ते करके वेलकम किया, अगर आपने कुछ बोला अपने होम टाउन के लैंग्वेज में जिससे वो कनेक्शन आया, वो आपने इंप्रेशन बना दिया है। अगर पहला इंप्रेशन अच्छा हुआ, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं, आपको 10 मिनट नहीं मिलने वाला है बेचने को, आपको वो 3 सेकंड में इंप्रेशन जमाना है। 3 सेकंड में आपको अच्छा इंप्रेशन जम गया तो बहुत धंधा होएगा और आपको ज्वेलरी निकालने का मौका मिलेगा। अगर 3 सेकंड में नहीं मिला आपका इंप्रेशन, वो कस्टमर घूम के और कहाँ देखेगा कि नहीं, मैं वहां देखती हूँ, वो काउंटर पे देखती हूँ। यहाँ पे लिखा है लेट देम हियर योर स्माइल। व्हाट इज दिस? आई मीन, इज देयर समथिंग रॉन्ग ओवर हियर? नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं है। लेट देम हियर योर स्माइल मतलब आपकी मुस्कुराहट उनको सुनाई देनी चाहिए। इसका मतलब हिचक के मत मुस्कुराओ। Smile wide. Okay, you should be able to smile wide. You should be able to smile with a heart. Many people put on a fake smile and then come back to normal. So by saying let them hear your smile, कि सबसे important और सबसे basic चीज smile होती है, ये हर एक आदमी को काउंटर पे करना ही पड़ेगा। whether वो कस्टमर से है, whether वो कलीग से है, आपको स्माइल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट पड़ाव है कस्टमर सर्विस का। लिसन एक्टिवली। कभी कभी दुकान का एड आता है पेपर में, कस्टमर फोन करता है और पूछता है कि हाँ जो आज जो एड आया है ना पेपर में, उसका तो हम लोग कौन सा पेपर, तो वो कस्टमर एक मिनट को देखने दो, हाँ दैनिक जागरण, हाँ दैनिक जागरण, हाँ कौन सा एड है। यू आर आस्किंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन विच यू एंड योर कंपनी हैव गिवन। आपका ध्यान कहाँ है? कस्टमर बोलता है मेरे को एमराल्ड की सेट, हाँ वो सर वो वाला ना, बड़ा वाला ना, वो तो बिक गया। हम सो इन्वॉल्व हैं कि हम सुन नहीं रहे हैं, हमको हमारा ध्यान ही भटका हुआ है और हम उल्टा सीधा कुछ भी बोलते जा रहे हैं क्योंकि फोन में। यू विल नोटिस दैट जो कस्टमर इंटरेस्टेड होता है वो एक्चुअली पहला फोन करता है। आने वाले जमाने में आप मानो या ना मानो, आपके दुकान में जो ग्राहक आएगा ना, वो पहले आपके वेबसाइट पे जाएगा। अगर आपके वेबसाइट पे कैटलॉग है, रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स, वो सब स्कैन करेगा, उसमें से शॉपिंग कर लेगा दिमाग में, और बाद में वो आएगा सोच समझ के कि ये 6 पीस मेरे को देखना है, बिकॉज उसको इतना समय नहीं बिताना है दुकान में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डोंट लिसन प्रॉपर्ली, यू हैव टू लिसन एक्टिवली। रहना और हाँ हाँ बोलना अलग बात है, एक्टिव लिसनिंग इज डिफरेंट। एक्टिव लिसनिंग मीन कस्टमर जो आपको बोल रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड करो तो वो बराबर समझ रहा है और आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब कुछ काम होएगा बाजू में मत रख दो, फटाफट खलास करो। आपको मालूम है ये रिपेयर में जाना है, चलना मैं शाम को दूंगी। क्यों शाम को दोगे? अभी क्या है करने को? बना वो रिसीट, बना रिपेयर का रिसीट बनाओ, फटाफट दे दो बैक ऑफिस में, वो लोग भेज देंगे। शाम को भेजा है, कल को भेजा नहीं, आप मेरे पास बहुत काम है, कस्टमर आएगा। अभी सेल्स के टाइम पे ये सब नहीं करने का। किसने बोला ये सब नहीं करने का? एक कागज बनाना आपको लगने वाला 40 सेकंड है या 2 मिनट लगने वाला है, आप क्यों वो काम को एंड ऑफ द डे के लिए रखते हो? ऑलवेज हैव एन सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपके टेबल पे जो भी काम है, आपके काउंटर पे जो भी काम है, उस पर अर्जेंसी होएगा तो आपका बॉल रोलिंग होएगा और अगले मुद्दे पे जाएगा। अगर कस्टमर ऐसा कुछ पूछता है और आपको उसका जवाब पता ही नहीं है, हम लोग थोड़े एम्बैरेस हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं कि यार कस्टमर को मेरे से ज्यादा पता है ना, आई डोंट नो व्हाट डू आई डू। चेहरे पे मत आने दो। एट द सेम टाइम डोंट से आई डोंट नो। यस नहीं पता, नो नहीं पता, डोंट नो मत पता। हमारी जिम्मेदारी है वो जानकारी होना। अगर आपको नहीं पता है, आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, आप लोग कस्टमर को घुमा फिरा के भगाने का कोशिश मत करो या बॉस को मत बुलाओ। आप श्योर हो कि आपका मैनेजर या और एक कलीग जो आपसे स्मार्ट है, लेकिन मैं उसको क्यों बुलाऊं, मैं मेरा कस्टमर उसको क्यों दूं, वो एनी हाउ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है मेरे से। Don't do that, okay? Don't be afraid, don't be scared of the customer, and don't ever be afraid to ask for help. Ask for help.
उसमें हम छोटा नहीं होते हैं, हम हमारी जितने हम अपने आप का वीकनेसेस दिखाएंगे ना, उतने हम पॉपुलर और लाइक्ड पर्सन बनेंगे। जितना हम घमंड और अपने आप को सबसे अव्वल समझेंगे ना, उतने दुश्मन बनेंगे। तो आप जितना जमीन पे रहोगे, ओके, जितना ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करोगे, जितना भगवान पे विश्वास करोगे, जितना कलीग्स का सपोर्ट लोगे, हेल्प मांगोगे, उतने ही आप लाइफ में और काउंटर में सक्सेसफुल होगे। सो डोंट गेट स्केर्ड टू आस्क फॉर हेल्प। यू विल नेवर नो, हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास पॉसिबली ना मेरे पास है ना किसके पास है। आप मेरे को कुछ पूछोगे, मैं आपको नहीं बता सकूंगा, मेरे को मेरे जो मेरे काम है उसका एक्सपर्टीज है। कल किसने मेरे को अगर मैसेज करके पूछा, सर आपको क्या लगता है सोने का भाव क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आंसर आना चाहिए, मैं कैसे उसको जवाब दूं। लेकिन अगर मैं हम्बल होकर सर मैं कैसे बताऊं आपको, वो तो आपको इकोनॉमिक एनालिस्ट को पूछना पड़ेगा या बिजनेस एनालिस्ट को पूछना पड़ेगा। आई हैव टू हैव द गट्स टू से दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग। हर एक आदमी को हर चीज आना जरूरी नहीं है। इसके लिए काबिल लोगों और अच्छे दोस्त बनाना काउंटर पे इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन आस्क फॉर हेल्प। टॉक टू योर कलीग्स और कलीग्स को समझाओ। ग्राहक का जो भी प्रॉब्लम था आप समझो। कलीग को ग्राहक को मिलाने के पहले आप एक बार ग्राहक के सामने कलीग को समझाओ, सिस्टम ये होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम थी, उनको ये था, तो उन्हें ये पूछे तो क्या लग रहा है आपको, सामने सामने कर दो। ऐसा नहीं कि ग्राहक को सर इसको समझाओ ना आपका प्रॉब्लम, विच मीन्स दैट आप सपोर्ट में नहीं हो, आप पीछे हट रहे हो। आपको पीछे नहीं हट रहे हैं, आप अभी तक फ्रंट में हो, आपने खाली हेल्प मांगा है। Any information with the customer is asked on the phone, please get the information, call them back from। कभी कभी कस्टमर आपके व्यवहार से, आपके ढंग से, चाय से, कॉफी से, ओके, कोई पानी का ग्लास लेके आता है, पानी भरा हुआ होता है, ग्राहक बैठा है, पीछे से प्यून ऐसा ग्लास रख के ऐसा ऐसा रख रहा है, उसने ग्लास को ऐसा पकड़ा है, ओके, और वहां रखा है। कस्टमर पानी नहीं पी रहा है। आपने कस्टमर को पूछा था पानी चाहिए, कस्टमर ने हाँ बोला। ये आदमी ने कस्टमर के कंधे के ऊपर से पानी रख के, आपने मंगाया, वो रख के चले गया। रखने के टाइम पे ऐसा उसने पटका, क्योंकि वो तो इरिटेटेड है, यहाँ वहां भगा रहे हो आप एक पानी का ग्लास के लिए। Now at some times the customer may not like it, ये क्या है, I mean what is the attitude, and a customer will never drink water from a glass which has been caught like that. There's a method to hold a glass. You hold the glass this way. ग्लास का 50% का नीचे का हिस्सा है ना, वहां पे पानी का ग्लास पकड़ना चाहिए। फिर वो प्यून हो, फिर वो सेल्स पर्सन हो, फिर वो मालिक हो, फिर कोई भी हो। अगर हम सर्विस के बारे में सीरियस है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ यू होल्ड द ग्लास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ डिटेल्ड सर्विस इज सपोज्ड टू बी। और अगर कस्टमर कभी भड़कता है तो एक बार दिमाग में रखो कि दे आर नॉट मैड एट यू, वो आप पे भड़का नहीं है, वो शायद कुछ हुआ है दुकान को लेके, या आपने रिपेयर टाइम पे करके नहीं दिया है, या आपका हीरा गिर गया है, या एमराल्ड जब ये आप रिंग साइजिंग कर रहे थे तो एमराल्ड का कलर चले गया, ऐसा कुछ हुआ है और कस्टमर बहुत अपसेट है। ही इज नॉट मैड एट यू, कुछ पर्सनल नहीं है। लेकिन फिलहाल आप ब्रांड के एम्बेसडर हो तो गाली आप खाओगे, सुन के आपको लेना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के आपको ले लो। इट इज नॉट पर्सनल, इवन दो ही में से कि आपको अक्ल नहीं है, आपका आंख नहीं है, कि आपको दिखता नहीं है कि हीरा गिरा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। और आप मेरे को बोलते रिपेयर करके मेरे को दे रहे हो, हीरा गिरा आपको दिखता नहीं है। एट दैट टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट इट। देयर आर 3 स्टेप्स, एक्सेप्ट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक। ये 3 स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है दुकान में जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, and there is something abnormal which has happened in the shop on that particular day, वो दिन पे कुछ अनहोनी कोई किस्सा हुआ है, whether it is कोई कस्टमर ने कुछ उठा के लेके गए, कस्टमर ने कुछ ऐसा किया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ हुआ, मेक श्योर दैट वो अनहोनी जो है ना, उसको आप कहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखो। बिकॉज अगर आपके पास मल्टीपल शॉप्स है तो ये शायद वहां भी हो सकता है। हमने किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर उसका डॉक्यूमेंट रखेंगे ना हम, तो ये हमारे फ्यूचर में भी काम आने वाली है। जो भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि अगर आप पढ़ रहे हो, आपको एक एक कड़ी मिलती जा रही है कि नहीं मिलती जा रही है। देयर शुड बी नो मिसिंग पीसेस, मतलब हर चीज, अरे ये ऐसा करो, हाँ वो मैं लिखने भूल गई थी, नहीं, हर चीज बराबर से डॉक्यूमेंट करो। कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर एक सेल्स पर्सन के पास पेशेंस नहीं है तो वो सेल्स प्रोफेशनल बन नहीं सकता। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।
प्लीज बोलना बहुत जरूरी है। अपने कलीग को जब बुला रहे हो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज यूज द वर्ड प्लीज, यूज द वर्ड थैंक यू विद द कस्टमर, बिकॉज एवरीबडी, आप बोलोगे थैंक यू क्यों बोलूं, मैंने तो उसको ज्वेलरी दिया, उसने पैसा दिया। एवरीबडी लाइक्स टू बी थैंक्ड, एवरीबडी को अच्छा लगता है अगर किसने मेरे को थैंक यू बोला, कनेक्शन जुड़ता है। एवरीवन लाइक्स टू बी थैंक्ड। एंड जब वो जा रहे हैं तभी भी स्माइल करो। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस हो गया, मैम कैशियर के वहां भर देना और मैं छोड़ के आ गई। जस्ट मेक श्योर दैट यू स्माइल एंड मेक देम हैप्पी दे विजिटेड यू। इफ वी कैन काउंटर के बाहर निकल के उनके साथ कैशियर तक जा सकते हैं तो वो करें। अगर हमारे पास एक रिसेप्शनिस्ट है या एक कस्टमर रिलेशनशिप पर्सन है जो वहां खड़े रह के उनके लिए दरवाजा तक लेके जाएगी, तो वो होना जरूरी है। आनंद सर खुद ये करते थे, मैंने उनको देखा है, कोई मेरे को ये डिनाई नहीं कर सकता, मैंने देखा है। वो कैश काउंटर के वहां खुद खड़े होते थे, हर ग्राहक को हाथ जोड़ते थे, थैंक यू बोलते थे। भगवान के वहां से एक फूल निकलता था, उनके थैली में एक फूल जाता था भगवान की तरफ से कि दिस इज ब्लेसिंग्स, कि हमको भी भगवान ने ब्लेस किया है, ये सेम भगवान आपके ज्वेलरी के और आपके घर को ब्लेस करेगा। तो वो फूल अंदर जाती थी और ये रिलीजियस प्रैक्टिस थी। जब वो एक दुकान थी, मेरे को बराबर पता है, टी नगर पे। सो इवन विथ योर कस्टमर, जब तक वो बाहर जा रहा है, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको पूछो कि और कुछ है जो आपकी सेवा कर सकता हूँ। उसके दिमाग में होना चाहिए कि सेवा करने के लिए वो कितने उत्सुक हैं ये लोग, मेरा खरीदी से ज्यादा सेवा पे लगे हुए हैं। तो अगर ये कस्टमर सेवा का पार्ट अगर हम बराबर समझ के, हमारे दुकान में कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है, अगर हमने बैठ के ऐसा 5 चीज लिखा कि कस्टमर सेवा मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 चीज हम देंगे, फिर वो हर स्टाफ मेंबर वो दुकान का वो 5 चीज देगा। ये 5 चीज भूलना ही नहीं चाहिए, शायद 7 चीज देवे, लेकिन ये 5 चीज सबके सब लोग देंगे। बिगिनिंग फ्रॉम अ स्माइल to thank you, to please, to coffee, water, whatever you want to do, those 5 things आप लिस्ट बना दो। ये 5 चीज का मतलब है कस्टमर सर्विस। कैशियर के वहां चिटका दो, हमारे यहाँ कस्टमर सर्विस यानी ये 5 चीज, वी बिलीव आपको ये 5 चीज मिली है। इतना स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड करो। जैसे आनंद ने बोला ना कि मैंने तो अनाउंस कर दिया कि मैं अगर बैंगलोर में दुकान खोलने वाला हूं, मैं कन्नड़ सीख के जाऊंगा, 10 सेंटेंस सीख के जाऊंगा। क्लियर, एनीथिंग विच यू, गोल हैज टू बी क्लियर, हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो वो अचीव होएगा। अगर हम देखेंगे करें हाँ हो जाएगा, तभी होएगा जब आपने ऑब्जेक्टिव बनाया। तो कस्टमर सर्विस भी आपके दुकान में तभी होएगी जब आपने वो 5 चीज लिखी और वो 5 चीज डिलीवर हुई। सो दिस इज all that there is to about customer service, and what I want to share with you through an expert trainer called Joy, who's here with me. Joy का USP है कि Joy ना स्टोरी टेलिंग करता है। स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज कल जैसे शंकर जी कह रहे थे, यू हैव टू लव योर जॉब, यू हैव टू लव योर प्रोडक्ट। हम जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से बेचते हैं ना, हमको वो प्रोडक्ट का पूरा जन्मपत्री आना चाहिए। प्रोडक्ट को हमने हाथ में लिया तो हमको पता चलना चाहिए कि लगभग 16 ग्राम है या 20 ग्राम है। 10% का यहाँ वहां होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट को हाथ में लेके ही ना हमको पता चलना चाहिए कि ये 20 ग्राम का चीज है, कि ये 40 ग्राम का चीज है, कि ये 62 ग्राम का चीज है। थोड़ा अंदाजा आना चाहिए, इतना एक्सपर्ट हमको बनना पड़ेगा। 10% वेरिएशन इज ओके इन अ बिगर पीस, 10% वेरिएशन इज ओके, बट 30 ग्राम का चीज को हम इसको लगभग ये शायद 20 ग्राम में आपके बजट के अंदर आ जाएगा। हमको पता होना चाहिए, बस ये लग ही नहीं रहा है 20 ग्राम का। सो अनलेस यू फॉल इन लव विथ योर जॉब, अनलेस यू फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट, जब तक आप प्रोडक्ट की एक एक चीज को रोमांस नहीं करते हो, इनेमलिंग को, कारीगरी को, फिनिश को, बैक साइड फिनिश को, हॉलमार्किंग को, स्टैंपिंग को, और ये हर एक चीज पे आप स्टोरी सेलिंग नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट सिर्फ गोल्ड वेट और गोल्ड रेट पे अटक जाएगा। फिर हमारा झगड़ा कस्टमर से भाव पे होएगा, और बिकॉज हम भाव पे झगड़ा करते हैं इसके लिए हमको डिस्काउंट करना पड़ता है। ऑल द लग्जरी ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी लग्जरी ब्रांड 50 रुपए का चीज 300 में बेचती है, क्योंकि वो लोग भाव की बात ही नहीं करते। भाव तो फिक्स है, बात करते हैं सर्विस की, क्वालिटी की, ब्रांड की। हम इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होने के बावजूद हम सर्विस वो हिसाब से हम नहीं दे पा रहे हैं। तो आने वाले जमाने में, अब आने वाले जब दुकान खुलेगा, अगर हम कस्टमर सर्विस पे ध्यान देंगे ना, तो ग्राहक आते रहेगा। और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दुकान में ग्राहक कम घुसने वाले हैं। कस्टमर सर्विस इज गोइंग टू बी द की, एंड यू विल हैव टू रिटेन सारे पुराने कस्टमर को, आपको रिटेन करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बड़ा गैप हो गया। जॉय, आर यू देयर? Yeah, I'm here.
Okay, Joy, please. Naveen, just I want to tell you, only 15 minutes left, so Yeah. you have to manage in 15 minutes only. It's Yeah, yeah, already 5:15. Huh? A wonderful session you are going ahead. Really thankful to you. Joy, 15 minutes, huh? Okay, got it. All right, so good afternoon, namaste, दोस्तों, मेरा नाम जॉय डिसिल्वा है. I hope everyone can hear me. Yeah, I can hear you. It's fine. Okay, so मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच हूँ और एक सेल्स ट्रेनर हूँ. सबसे पहले तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग, आपका जो लॉकडाउन का टाइम है, इसमें ये सही इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करके, सो दैट इज अ गुड थिंग. मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा. मैं 20 साल से सेल्स इंडस्ट्री में हूँ और मैंने आप लोगों की तरह ही सेल्स में अपनी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 20 साल पहले. और मैंने काफी अलग अलग सेल्स किए हैं. तो मैंने यूरेका फोर्ब्स में वैक्यूम क्लीनर्स बेचे हैं, मैंने फिलिप्स में फिली शेव्स बेचे हैं, और मैंने ज्वेलरी भी बेचा है. मैं जमैका, एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज में, वहां पे 3.5 साल जो है काउंटर सेल्स करता था. तो डोर टू डोर सेल्स, काउंटर सेल्स, इवन कोल्ड कॉलिंग जो है, फोन पे लोगों को कॉल करना, उनको क्रेडिट कार्ड बेचना. आई हैव डन ऑल ऑफ दिस. सेल्स से मुझे काफी ज्यादा लगाव है और मुझे लगता है कि सेल्स में जो बंदा माहिर हो जाता है वो जिंदगी में माहिर हो जाता है, क्योंकि हम हर वक्त कुछ ना कुछ बेचते ही रहते हैं. तो कभी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कभी हम खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं. हमारी आइडियाज जो है, हमारी सोच जो है, वो लोगों के सामने हमको बेचना पड़ता है. तो सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप सेल्स में सीखेंगे वो आप जिंदगी भर यूज करेंगे. तो आज का जो अभी का जो सेशन है, काफी चीजें जो है वो आनंद सर ने और नवीन ने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा. लेकिन मैं अपनी जिंदगी की कुछ कहानियां जो है वो शेयर करना चाहूंगा. मेरे सेल्स का जो प्रोफाइल है वो रिलेटेड कहानियां, और उन कहानियों से मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या गलतियां की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. कैन सी द स्क्रीन? यस. ओके, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, सिर्फ 2. पहला, आप खुद गलतियां करके सीखो, यानी कि खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, जिसे लोग तजुर्बा कहते हैं. गलती करो फिर सीखो. और दूसरा जो तरीका है वो दूसरों के गलतियों से सीखना, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना. अब जो पहला ऑप्शन है, खुद के एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है. वो इसलिए क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं. तो इसलिए आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो आपके कलीग्स हैं वो एक ही जॉब में सालों भर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अलावा किसी और से सीखा ही नहीं, कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, कभी कोई बुक उन्होंने नहीं पढ़ा. और जो दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस है. इसमें एक शर्त है कि आपको उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो ये जॉब पहले कर चुके हैं और जो गलतियां पहले कर चुके हैं, जैसे कि नवीन या फिर जैसे कि मैं. तो मैंने कुछ फंडामेंटल्स जो हैं वो बनाए हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. तो हमारे पास आज टाइम कम है. 6 फंडामेंटल्स की जगह में सिर्फ 3 फंडामेंटल्स जो है, 3 रूल जो है, प्रिंसिपल जो है, वो आज शेयर करूंगा. मेरे लेसन्स, मेरे मिस्टेक्स, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन लेसन्स को अगर आप अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बी एबल टू गो अहेड एंड मूव अहेड इन लाइफ. तो शुरू करता हूं. सबसे पहला जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, पहला पॉइंट है गेट यूज्ड टू रिजेक्शन, यानी कि ना सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी. सेल्स में और जिंदगी में शायद यही समानता है कि आपको ना शब्द जो है वो बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा. तो मैंने आपको बताया था कि मैं यूरेका फोर्ब्स में वैक्यूम क्लीनर्स बेचा था आज से 20 साल पहले, और उस वक्त वैक्यूम क्लीनर की जो प्राइस थी वो 6,000 रुपीज थी. काफी बड़ी रकम थी आज से 20 साल पहले. कुछ लोगों का पगार हुआ करता था 6-7 हजार रुपए, तो हमें काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ता था. जैसे ही मैं बिल्डिंग में घुसता था, हमारे पास हमारे 6 किलो का मशीन होता था, जो डेमो वैक्यूम क्लीनर है वो होता था. जैसे ही हम बिल्डिंग में घुसते थे तो हमें बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड रोकता था. अरे कौन है, किधर जा रहे हो? तो हम उसको बोलते थे कि मैं यूरेका फोर्ब्स से हूँ और वैक्यूम क्लीनर दिखाने जा रहा हूँ. तो वो मतलब हमको गाली देके भगाता था. अगर आप लोगों ने इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स का नाम कभी सुना है, तो उस तरह की गालियां हमको सुनने मिलती थी, बेन स्टोक्स निकलो यहाँ से सेल्समैन साले. तो इस तरह हमें भगा दिया जाता था. वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिजेक्शन का. लेकिन वो रिजेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम उस सिक्योरिटी गार्ड को टैकल करके आगे बढ़े. तो हमने बहुत सोच लगाया. फिर एक बार तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधा चला गया बिल्डिंग के अंदर और सीधा लिफ्ट के पास गया. तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका, ये भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कौन है वो? तो मैंने उनको कहा मैं मिस्टर शाह से मिलने जा रहा हूँ, अभी होंगे ना वो घर पे? तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा और मुझे कहा हाँ साहब हैं घर पे, और मुझे सलाम भी मारा. अब मिस्टर शाह कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर बिल्डिंग में जो है एक ना एक मिस्टर शाह जरूर है.
हाँ, तो इस तरह से मैंने देखा कि रिजेक्शन जो है वो आपको हर जगह मिलेगा, पर उस रिजेक्शन से निकलने का एक तरीका भी होता है। जब हम बिल्डिंग में घुसते तो हम लोग टॉप फ्लोर से शुरू करते, हर कस्टमर का बेल दबाते, कस्टमर जैसे दरवाजा खोलता तो हम अपना ओपनिंग स्पील उनको देते थे, हाय माय नेम इज जॉय डिसिल्वा, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ब्स, और कस्टमर जो है हमारे मुंह पे दरवाजा मारता था। तो एक कस्टमर ने मुंह पे दरवाजा मारा, दूसरे कस्टमर ने मुंह पे दरवाजा मारा, फिर हमने सोचा कि यार ये जो 6 किलो का मशीन है जो कंपनी ने दी है वो किस दिन काम आएगी। तो जैसे तीसरे दरवाजे पे हमने खटखटाया और कस्टमर ने दरवाजा खोला, सबसे पहले तो वो 6 किलो की जो मशीन है वो हमने दरवाजे के आड़े पे रख दिया, अभी बंद करके बता। तो इस तरह रिजेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। हमने दिमाग में गणित लगा लिया था जब मैं यूरेका फोर्स में था, तो जब 100 ना सुनने पड़ते थे तब जाके एक हाँ सुनने को मिलता था। ये गणित जो है वो बिठा दिया था हमने दिमाग में, और ये गणित बेटर होता गया। जब मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया तो हम लोग दिन में शायद 5 या 6 कस्टमर से मिलते थे, और उन 5 या 6 कस्टमर से भी सिर्फ 1 या 2 कस्टमर ऐसे होते थे जो ना बोलते थे, लेकिन ना जरूर बोलते थे। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा सक्सेसफुल आदमी है जिसने कभी ना नहीं सुना हो, फिर वो चाहे अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके करियर के शुरुआत में उनको ऑल इंडिया रेडियो ने ना बोल दिया था क्योंकि उनकी आवाज की वजह से, या फिर ये दूसरे महाशय, इनका नाम है जैक मा, और ये एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है। अभी फिलहाल मुकेश अंबानी ने टेक ओवर कर लिया है, पर ये ऑनलाइन रिटेल के बादशाह हैं। इनकी कहानी जब मैं सुनता हूं तो मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। ये हर जॉब से निकाले नहीं गए, इनको इनफैक्ट सिलेक्ट ही नहीं किया। एक जगह पे केएफसी के वेटर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, केएफसी में वेटर बनने के लिए, और 20 जो थे इनके साथ में 20 और कैंडिडेट थे, और ये अकेला बंदा रिजेक्ट होके आ गया, अकेला रिजेक्ट होके आ गया। तो कभी कभी मैं इसको देखता हूं तो ये सोचता हूं कि अगर ये उस दिन अगर वेटर बन गया होता तो क्या ये आज वो रिचेस्ट बिजनेसमैन बनता? शायद नहीं। तो अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ पिक्चर में कहा था कि इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना सुनना भी बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। ना शब्द जो है उससे आपको प्रेरित होना है, उससे आपको आगे बढ़ना है, ये आपको मोटिवेट करना चाहिए। काफी लोग यहाँ पे यू टर्न मार देते हैं और निकल जाते हैं, आगे जूझते नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको समझ जाना चाहिए आप जितने ना सुनोगे उतनी ही जल्दी आप हाँ पे पहुंचोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ऑलरेडी नवीन ने काफी बताया, एंड इवन आनंद सर ने थोड़ी देर पहले बताया, नेवर अज्यूम। हम काफी बार अज्यूम करते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो शायद लेगा या नहीं लेगा। मैंने ये गलती जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे की थी। मैं काफी टारगेट ओरिएंटेड था, तो मुझे टाइम पास कस्टमर पसंद नहीं थे। तो मैं कस्टमर को ऊपर से नीचे तक देखता था, अगर ये बंदा चप्पल पहन के आया है, इसके पास गाड़ी नहीं है, तो मैं छोड़ देता था उस कस्टमर को कि कोई और अटेंड कर लेगा। और ऐसे ही कस्टमर को जब मैंने छोड़ा, वो बंदा व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन के आया था, तो मुझे लगा ड्राइवर है। मैंने उसको छोड़ दिया और वो बंदा पूरा हर जगह चक्कर मार के एक काउंटर पे रुका और उस काउंटर पे झुक झुक के देखने लगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो और भी बढ़ गया, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे वही कस्टमर देखते हैं जो प्राइस टैग देखते हैं। ऐसा झुक झुक के देखने वाला सिर्फ प्राइस टैग देखने वाला होता है। तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसको दूसरी सेल्स गर्ल ने अटेंड किया, और थोड़ी देर में देखता हूँ कि ये बंदा जो अपने जेब से कैश निकाल रहा है, कैश, हार्ड कैश, और वो कैश लेके कुछ खरीद रहा है। तो मैं वहां पे देखता ही रह गया। और इतना ही नहीं, वो बंदा चला गया, अपनी वाइफ को लेके आया। शायद उसकी वाइफ को पसंद नहीं आया जो चीज उसने ली थी, और उसकी वाइफ ने भी कैश निकाला, अपने पर्स से कैश निकाला, और उन्होंने अपग्रेड करके कोई बड़ी चीज ले ली। तो हम लोग बार बार अज्यूम करते हैं कस्टमर को देख के कि ये शायद ये कस्टमर लेगा नहीं लेगा। हमें अज्यूम नहीं करना है, हर कस्टमर को एक तरह से ट्रीट करना है, फिर भले वो ड्राइवर हो, भले वो चाय वाला हो, भले वो कोई भी हो, क्योंकि हम कस्टमर की हैसियत नहीं जानते और ये नहीं जानते कि कस्टमर आगे चल के क्या बनेगा। मैं एक स्टेटिस्टिक आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये हमने रिटेल में देखा हुआ है, लास्ट के 5 सालों की बात है ये, कि बहुत सारे वॉक-इन्स जो है रिटेल स्टोर्स में कम हो चुके हैं। बहुत सारे कस्टमर्स अभी ऑनलाइन खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से। तो मैं जब पिछले 5 साल रिटेल में था, तो हमने एक सर्वे किया। हमने मिलेनियल्स जो हैं उनको जाकर के पूछा कि आप स्टोर में क्यों नहीं आते। एक मिलेनियल, एक लड़की है 19 साल की, उसको हमने पूछा, उन्होंने फोन लिया था अमेजोन से। तो हमने उनको सीधा सवाल पूछा कि आपने फोन अमेजोन से क्यों लिया, आपके घर के सामने स्टोर है, आप वहां पे क्यों नहीं गए। 19 साल की लड़की। तो वो ये बताती है कि जब भी मैं रिटेल स्टोर में घुसती हूँ, तो ये साइड के काउंटर के खड़े हुए 3 लड़के और इस साइड पे एक काउंटर पे खड़े हुए 3 लड़के, ये 6 लड़के मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं। हाँ, तो मुझे सेफ नहीं लगता।
इमेजिन कीजिए कि आपको कोई बोलता है आपका स्टोर सेफ नहीं है, तो वो किस तरह का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हम काफी बार अज्यूम करते हैं कि कस्टमर नहीं लेगा, और वो जो एजम्पशन है वो हमारे एटीट्यूड में दिखता है। कस्टमर को पता चलता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम कोई बड़ा कस्टमर चाहते हो। जैसे मुंबई में ऑटो रिक्शा वाले बहुत फेमस है, उनको छोटा भाड़ा नहीं चाहिए होता, उनको लंबा बड़ा भाड़ा चाहिए होता है। हम उसी तरह बन चुके हैं। तो आगे चल के अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर्स आते रहे हमारे स्टोर्स में, बहुत जरूरी है कि हम सारे कस्टमर्स को रिस्पेक्ट करें। तो ये दूसरा पॉइंट है कि कभी कुछ अज्यूम नहीं करना, हर कस्टमर को एक तरह से ट्रीट करना है, कभी जज मत करना। यू नेवर नो कि कौन सा कस्टमर जो है आगे चल के बड़ा कस्टमर बन सकता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जब मैं जमैका में था और मेरे पास एक कपल आया था, एक कस्टमर कपल, जो महिला थी, उनको मैंने काफी सारे ब्रेसलेट्स दिखा, उनको पसंद नहीं आया, और काफी देर के बाद मैंने उनको एक डायमंड ब्रेसलेट दिखाया जो उनको काफी पसंद आया। तो मैंने करीब 1-1.25 घंटा उस कपल के साथ में स्पेंड किया था। और जैसे ही प्राइस देने का टाइम आया, मैंने प्राइस बताया उस अमेरिकन को, तो अमेरिकन ने मुझे सीधा एक सवाल पूछा, आर यू दी ओनर? क्या आप ओनर हो? तो मेरे जो ओनर थे उस टाइम पे सिर्फ 10 फीट की दूरी में खड़े थे, काउंटर के पीछे थे वो भी। तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो ओनर नहीं हूँ, ओनर ये हैं, ये मिस्टर केसवानी है। और मैंने अपने ओनर को बुलाया, तो मेरे ओनर आया, उन्होंने हाथ बात मिलाया कस्टमर से, थोड़ी बातें हुई, और फिर कस्टमर ने पूछा कि ये जो प्राइस दिया है इस ब्रेसलेट का, इज दिस द बेस्ट प्राइस, कैन यू गिव मी अ बेटर डील? तो मेरे ओनर ने ब्रेसलेट देखा और कहा, नहीं ये तो सबसे बढ़िया प्राइस है, मैं इसमें अभी और डिस्काउंट नहीं दे सकता। कस्टमर ने कहा, नहीं ये तो काफी महंगा लग रहा है मुझे। तो ओनर ने वो ब्रेसलेट उठाया और उस महिला के हाथ पे पहना दिया, और महिला जो है वो ब्रेसलेट देख के काफी खुश होने लगी, काफी स्माइल करने लगी। तो मेरे ओनर ने कहा, देखिए अभी बताइए कि क्या अब भी आपको ये ब्रेसलेट जो है वो एक्सपेंसिव लग रहा है? कस्टमर ने मुंडी हिलाया, फिर थोड़ी देर के बाद अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के वो परचेस किया। अब ये सारा जब हो रहा था, तो क्योंकि मेरे बॉस डील कर रहे थे, तो बॉस ने ही सारी बिलिंग फॉर्मेलिटीज जो है, इनवॉइस बनाना, बिलिंग करना, वो सारा उन्होंने खत्म किया। और जब शाम को मैं डेली सेल्स रिपोर्ट जो है वो देख रहा था, तब मैंने देखा कि मेरा नाम जो है उस सेल पे नहीं था, मेरे बॉस ने खुद अपना नाम लिखा था। तो अगर मेरा नाम नहीं है मतलब मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मैं गया अपने बॉस के पास और मैंने पूछा, सर ये सेल में आप मेरा नाम लिखना भूल गए? बॉस ने कहा, नहीं मैं भूला नहीं, ये सेल तुमने क्लोज नहीं किया था, तो तुम्हारा कैसे हुआ? मैंने कहा, सर मैंने भले ही क्लोज नहीं किया, लेकिन वो कस्टमर मेरे साथ में थे, मैंने 1 घंटा उनके साथ में स्पेंड किया, उनको ब्रेसलेट भी मैंने ही पसंद कराया, और मैंने सेल ऑलमोस्ट क्लोज कर ही दिया था अगर वो नहीं पूछते कि आप ओनर हो क्या। तो मेरे ओनर ने कहा, हर जो कस्टमर है वो अगर पूछता है कि आप ओनर हो या नहीं, तो वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि क्या तुम सही आदमी हो या नहीं, जो प्राइस तुम दे रहे हो, जो डील तुम दे रहे हो, क्या वो सही डील है या नहीं। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम सही आदमी हो? मैंने कहा, हाँ मैं सही आदमी हूँ। जो प्राइस तुम दे रहे हो, क्या वो सही प्राइस है? मैंने कहा, हाँ सही प्राइस है। तो फिर तुम ओनर हुए, क्यों बोल रहे हो कि कोई और ओनर है? और उस दिन से मेरा जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया। पहला मेरा एम्प्लॉय माइंडसेट था, मैं हर चीज को जॉब की तरह देखता था, और अगर आप हर चीज को जॉब की तरह देखोगे, जो जॉब तुम्हारा है तुम बस वही करोगे, बाकी जो जॉब है वो जिसका है वो करेगा। लेकिन अगर आपका ओनर का माइंडसेट है, तो आप पूरे दुकान के बारे में सोचते हैं, आप पूरे बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, कॉस्ट कैसे कम करना है। तो ये जो ओनर माइंडसेट है ये बहुत जरूरी है, और ये ओनर्स माइंडसेट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जब ये ओनर्स माइंडसेट मैंने अडॉप्ट किया, तो मेरी बहुत जल्दी प्रमोशन होने लगी, मैं स्टोर मैनेजर बन गया था 6 महीने में। और वो शायद इसीलिए बना था क्योंकि हर जो ओनर है वो सिर्फ 2 सवाल पूछता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ये सोचिए कि ओनर क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसके जहन में से 2 सवाल है। सवाल नंबर 1 कि क्या ये बंदा जो है मेरा बिजनेस संभाल सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा सवाल जो है कि क्या ये बंदा मेरा बिजनेस बढ़ा सकता है। और काफी लोग जो है वो पहला सवाल जो है उसमें फिट बैठते हैं, क्योंकि वो काबिल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, तो वो संभाल सकते हैं। लेकिन बिजनेस बढ़ाने के मामले में ओनर को थोड़ा सा डाउट रहता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप बिजनेस नहीं बढ़ा सकते तो वो बिजनेस जो है आगे चल के डूबेगा जरूर। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये ओनर्स माइंडसेट जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, आप काफी आगे तक तरक्की करेंगे। तो ये 3 चीजें जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। एक क्विक समरी में करना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, ना शब्द से आप डिमोटिवेट मत होइए। दूसरा, अज्यूम मत कीजिए, सारे कस्टमर्स को एक साथ ट्रीट कीजिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो ओनर्स माइंडसेट, वो आपको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग दोबारा से वी विल बी एबल टू कवर द रिमेनिंग 3 points. थैंक यू सो मच नवीन, एंड ओवर टू यू. Thanks, Joy. Fantastic, यार. You put it up so well. Perfect. And ये सीख जो जॉय ने दी है, ये सीख हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है. गेट यूज्ड टू रिजेक्शन. फिर आप सेलिंग कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो लाइफ में भी, अगर एक बार हमने एक्सेप्ट किया अपने आप, एक रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया, फिर ही हम, वो जो आनंद सर भी यही बोले थे, उन्होंने कुछ बोला था कि अनलर्न करो और फिर लर्न करो. एक बार एक्सेप्ट करो, अनलर्न, देन यू विल लर्न एंड देन यू कैन रीलर्न अगेन. So we've taken up a lot of time. 5:30 बज गए हैं. इनफैक्ट आज ज्यादा टाइम लिया. So कल हम मिलेंगे. कल हम क्या करने वाले, मैं आपको एक जिस्ट बता देता हूँ. कल हम लोग ये जॉय का सेशन वी विल कंटिन्यू. जॉय यू विल बी डूइंग द अदर 3 learnings tomorrow. Okay? Yes. तो ये 3 लर्निंग सेल्स के लिए, स्टोरी सेलिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम कल करेंगे. एंड आई एम श्योर थोड़ा टाइम होएगा. मेरे को एक चीज, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में आपको एक झलक देना है. तो वी विल डू स्टोरी सेलिंग एंड वी विल डू विजुअल मर्चेंडाइजिंग. आफ्टर दैट अगर हमको 5 से 7 मिनट का गैप मिला तो क्वेश्चन एंड आंसर भी हम लेंगे, फीडबैक भी लेंगे. ऑल्सो बिफोर वी साइन ऑफ टुडे, एक जो कल का जो यूआरएल था वापस हर्ष अभी डालने वाला है वो यूआरएल. अगर आप आज भी फीडबैक, कल काफी लोगों ने फीडबैक थी. क्रांति, आई टेक 1.5 minute. देयर आर 3 feedbacks which I've got. I just want to reply to that. You know, there are people who have written in yesterday. कल काफी लोगों ने लिखा था, तो उन्होंने अपना, लाइक सुनील मासोन, उन्होंने बोला था कि आज हमको अलग अलग स्ट्रोक्स देखने. कल आपने हमको बोला था कि सेल्स के स्ट्रोक आपको कल दिखाएंगे, तो जॉय ने आपको 3 स्ट्रोक दिखा दिए कि सेलिंग में क्या करने का है. तो सुनील, दिस इज फॉर यू. आम्रपाली जुएल से बहुत ही अच्छा, मतलब उनका पार्टिसिपेंट था. बहुत लोगों ने वहां से लिखा है कि हमको हाई एंड सेलिंग का फोकस्ड हमको टेक्निक सीखना है. ऑनेस्टली इतना फोकस नीश करना हम कोशिश करेंगे, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक ही इस पे फोकस करना, बिकॉज द होल मास इज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलर्स. ईशा सेठी ओपीएस कुरुक्षेत्र से, ईशा सेठी ने लिखा था कि सेल्स पर्सन का फ्यूचर क्या है, कितने साल तक मैं सेल्स पर्सन बनी रहूंगी, फ्यूचर क्या है. तो द होल आइडिया इज यू डोंट हैव, सेल्स पर्सन को ऊपर जाके खाली मैनेजर नहीं बनना है दुकान का. सेल्स पर्सन मर्चेंडाइजर बन सकती है. सेल्स पर्सन वन ऑफ द बेस्ट एचआर पर्सन बन सकती है वो दुकान के लिए. सेल्स पर्सन ऑपरेशन संभाल सकती है. सेल्स पर्सन कस्टमर सर्विस संभाल सकती है. सेल्स पर्सन कस्टमर रिटेंशन संभाल सकती है. शी कैन ग्रो हर प्रोफाइल. हर चढ़ाव ऐसा चढ़ाव नहीं होता है. कोई चढ़ाव और कोई जिम्मेदारी ऐसी भी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी उसको बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो. तो ये 4-5 अच्छे जीआरटी ट्यूटोकॉन से मैंने पद्मराजा का उनको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि थोड़ा मुश्किल होगा खाली इंग्लिश में बात करने, बिकॉज शी वाज रिक्वेस्टिंग कि प्लीज टॉक ओनली इन इंग्लिश. तो आई सेड वो थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज यहाँ पे 90% ऑडियंस जो है वो हिंदी समझती है. तो हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं 75-80% हिंदी एंड वी डू 20% ऑफ इंग्लिश. सो दैट्स इट. हर्ष, यू पुट द यूआरएल. You put the URL, Harsh? Okay, Harsh, he's put the URL, तो आप वहाँ भर सकते हो. क्रांति, take charge. Thanks. Manoj ji, you want to say something? I mean, quickly, half a minute. Yeah, thank you very much, Naveen ji. आपने बहुत अच्छा आज प्रेजेंटेशन दिया. स्पेशल थैंक्स टू क्रांति, जो आज का इतना बिजी शेड्यूल, आज आपका एक इंटरनेशनल ये वेबिनार है. आप लोग को भी मैं ये बोलूंगा कि वो वेबिनार ज्वाइन कीजिए. उसमें सब इंटरनेशनल लेवल के सभी रिटेलर आ रहे हैं. और सब हिंदी में बात करेंगे. हिंदी में बात करेंगे. और कितने बजे है क्रांति? वो 6:30 बजे है. उसको सिर्फ पासवर्ड है, उसको पासवर्ड है KNC123. KNC123 बस. ठीक है. एक तो वो है जिसमें इंटरनेशनल लेवल के सभी बहुत सारे कंट्री से रिटेलर आ रहे हैं. आप वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. आज जो है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था. जीआरटी से सर आए थे. उन्होंने सबसे बड़ी चीज बताई कि ट्रेनिंग हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो ओनर हो, स्टाफ हो, कोई भी हो. क्योंकि और सबसे बड़ी बात एक चीज और उन्होंने बताया कि हर एक कस्टमर जरूरी होता है, चाहे कोई भी कस्टमर छोटा नहीं होता है. और नवीन जी ने तो बहुत सारी चीजें सिखाई. राहुल जी ने, जॉय ने, थैंक्स जॉय, वंडरफुल. मेरे को मतलब पहली बार आपको देखा और ऐसा लगता है कि आपको सुनता ही रहूं. आपके एग्जांपल्स इतने अच्छे थे. स्पेशली मैं थैंक्स सुमित जी को देना चाहूंगा, जो हमारा पूरा टेक्निकल संभालते हैं. ऑर्नामेंट्स के ओनर हैं.
और दिन भर वो टेक्निकल्स पे लगे रहते हैं। आज उन्होंने फेसबुक लाइव करने की भी कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कल चाहे तो यूट्यूब लाइव या फेसबुक लाइव भी वो करेंगे। थैंक यू क्रांति, थैंक यू एवरीवन। और प्लीज सभी लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि अपने टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, ताकि वहां हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। हाँ, बहुत सारा प्रेजेंटेशन मैं कम से कम 50 बार वो लिंक डाल चुका हूँ। हाँ जी। और हम लोग का जब ये सेशन चल रहा था उस बीच में ही करीब 100 लोग ऐड हो गए, कम से कम 100 लोग ऑलरेडी ऐड हो गए। And Sumit, what we'll do tomorrow, no, before we shut, no, we'll have a 1.5 minute break. In that break specifically, they can go there. So that break is for going on to Telegram. So then we'll work that way. Thank you very much. Thank you everyone. और thank you so much. See you tomorrow. कल आप लोग कोशिश कीजिए 4 बजे से पहले ही लॉग इन हो जाएं, जो लोग लॉग इन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 4 बजे ही हो। थैंक यू व्यूअर। और कल हम डेफिनेटली, जैसे आज और कल हम बहुत लकी रहे, we'll have somebody very exciting, बहुत जिनसे हम सीख सकेंगे पहले 10 मिनट। तो जरूर stay tuned with us for tomorrow's guest speaker also. Thank you very much. Thank you everyone. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Bye bye.